Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Evening, sir. Good Vinod evening, sir, sir. Sunita ma'am, Biju sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. Good evening, Namaskar. everybody. Good Good evening, sir. So, Biju sir, are we good to go? Yeah. Yes, sir. Please introduce Sunita ma'am. There is no introduction required, but still. So, Vinod sir, new platform, new year. जी 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 Yeah, so we thought to, take an extra mile in learning जी जी with you and all. जी Yeah, Biju sir started. Thank you, sir. Ms. Sunita Sharma, a name that resonates with excellence and dedication in the realm of education. Sunita Sharma has penned several invaluable resources, including chapter-wise MCQ Sahitya Sagar and Kenki Sanchai, ICC Class 10 Hindi topic-wise grammar MCQs, ICC Grammar MCQs Part 2, ICC Newton Abhyas Pustika, and an audiobook. Her achievements include Hindi Rattan Puraskar 2023, the Extra Mile Educator 2022 Award, Certificate of Honor for Commendable Service. As a CBC resource person, Sunita Sharma conducted webinars on creating effective MCQs. Her innovative and diverse teaching methods have enriched Hindi language education. She meticulously crafted lesson plans aligned with the NEP 2020 vision of holistic and inclusive learning. She served as the editor of BTAG e-magazine. As the subject ambassador of Hindi, she skillfully handled 35 branches of Orchids, the international school. Her participation in Aviskar, organized by Mumbai University, reflects her commitment to academic exploration. She has attended council meetings of ICC schools and contributed to educational policy discussions. She has delivered Naviance career counseling presentations to senior sections. Ms. Sunita Sharma presented papers in 3 national and 1 international seminar conducted by Mumbai University. Her initiative ranked her 5th among 100 teachers, emphasizing her commitment to student growth. Her training efforts extended to preparing students for the Rajya Puraskar and Rashtrapati Puraskar at the Indian School Muscat. Sunita Sharma played a pivotal role in selecting appropriate content, contributing to curriculum enhancement. Her tireless dedication, leadership, and passion have left an indelible mark on the educational landscape. We welcome you to moderate today's session. Please proceed. The stage is yours. Yes, Sunita ma'am, over to you. Thank you so much, sir. Thank you, Vijay sir. Thank you, ma'am. शिक्षा की ज्योति के दीप स्तंभों को शुभ संध्या। आज इस कार्यशाला की शुभ बेला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं जो ज्ञान की ज्योति फैलाकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, आपके प्रति मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। आपके आगमन से इस कार्यक्रम को एक नया आयाम मिला है। ऐसा लग रहा है मानो ज्ञान दीपों का संगम हो गया हो। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एनसीएफ की संस्तुतियों के अनुकूल हिंदी भाषा शिक्षण में केंद्रित दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले उपाय। चर्चा के मुख्य बिंदु हैं दक्षता विकास के अनुकूल हमारी पाठ योजनाओं का या पाठ विस्तार, नवाचारी लयात्मक प्रयोग एवं अवधारणात्मक आत्मसातीकरण, कौशल विकास के लिए रोचक भाषिक गतिविधियां। जी हाँ, यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह हिंदी भाषा शिक्षण अधिक प्रभावी और रोचक बनाने में मदद कर सकता है। इस विषय पर आज डॉक्टर विनोद प्रसून जी प्रकाश डालेंगे। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन और ट्रेनिंग के आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता शर्मा आज की मध्यस्थ मॉडरेटर हूँ। सबसे पहले माननीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने
मुझे यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया और सदैव मुझ पर विश्वास किया। इस यात्रा ज्ञान को आगे बढ़ाने से पहले केवल कुछ सूचनाएं जिससे हम सभी अवगत हैं। आप सभी जानते हैं, शांति बनाए रखने के लिए अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखें, कैमरा ऑन रखें ताकि हम जुड़ाव महसूस कर सके। सवाल जो भी आपके मन में है, जी हाँ, आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित तौर पर आप सभी को मिलेगा। सीधे चैट बॉक्स से आप अपने प्रश्नों की लड़ी जो है वो लगा सकते हैं। सत्र के अंत में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। फीडबैक सर्टिफिकेट लिंक जो है पोस्ट कर दिए जाएंगे, कृपया इन फॉर्म को भरना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से सबसे पहले मैं समग्र हिंदी परिवार की तरफ से डॉक्टर अब्दुल सलाम सर जी का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करती हूँ। सर, आपकी उपस्थिति इस वातावरण को ज्ञान दीप्ति से भर देती है, मानो स्वयं सरस्वती विद्या की वर्षा कर रही हो। आप एक ऐसे विद्वान हैं जिनका यश स्वयं आपकी पहचान है। पदक प्रतिष्ठा आपके लक्ष्य कभी नहीं रहे, बल्कि सत्य और न्याय ही जीवन का ध्रुव तारा है। सलाम सर एक अखंड ज्योति हैं जो शिक्षा के पथ पर निरंतर प्रकाश बिखेरते रहते हैं। आपके कर्म, आपकी निष्ठा दोनों ही अद्वितीय और अनुकरणीय हैं। आप संस्थानों के न केवल संचालक हैं, बल्कि एक आदर्श प्रेरणा स्रोत भी हैं। कर्तव्य निष्ठा ही आपका सौंदर्य और महानता का सार है। शिक्षा का क्षेत्र एक सतत धारा है जहां नवोन्मेष और गतिशीलता की सफलता के मंत्र हैं। हमारा सौभाग्य है कि सलाम सर जैसे दूरदृष्टा हमारे बीच विद्यमान हैं, जो शिक्षकों में उत्कृष्टता का ज्वार जगाते हैं। कठिन निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का साहस उनमें कूट कूट कर भरा है और इसी का संचार वे हम सभी में करते हैं। आइए हम उनके ज्ञान और अनुभव के अमृत तुल्य स्रोत से सीखें और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखें। हमारे संस्थापक निर्देशक डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सलाम एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 23 से अधिक वर्षों का बेहतरीन अनुभव है। वह सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्ति और मास्टर ट्रेनर है। बीटेक और अब एक्स्ट्रा माइल शिक्षा और प्रशिक्षण के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सर वर्तमान में विबग्योर हाई बैंगलोर के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वह नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भारत सरकार के एक असेसर के रूप में जुड़े हुए हैं। मैं गर्व से, सम्मान से आज डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो आइए उनके अनुभवों से ज्ञान का अमृत ग्रहण करें और शिक्षा के पथ पर साथ साथ आगे बढ़ें। डॉक्टर विनोद सर, क्षमा करें, डॉक्टर अब्दुल सलाम सर। Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Good evening, Dr. Vinod Chauhan ji, or Sunita ma'am, Viju sir, and all the educators who have joined. I feel very happy today because we are meeting, Vinod sir after a long time, जी जी along with the much, very well-known resource person as well as, expert Sunita Sharma. So, इसकी combination, दोनों की combination, everybody knows it is very beautiful. जी And thank you, Sunita ma'am, for the beautiful, introduction. Though it was so long, I'm very happy to see both of you on the new platform, Extra Mile Education and Training, along with my brother Viju sir. And definitely we all educators are very much blessed to have educators like Vinod sir and Sunita ma'am. Definitely we are going to get a lot of things today regarding competency in teaching of the Hindi language. Many are asking about curriculum, and our new curriculum will be released soon. So whichever curriculum we deal with, competency is a must.
wherein we have to take care of the linguistic aspects, especially pronunciation and all. So Vinod sir will tell more about the competencies which are required in teaching Hindi language. I always tell my teachers, if you are teaching Hindi, teach in Hindi only, no translation. Then only students will learn. So their conversation should also be in Hindi. So if you are teaching any other language, that should be in that particular language only. So thank you so much, all participants, for joining. Thank you, everybody. Hearty welcome once again. Please stay back and enjoy. Over to Sunita. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय बिजू सर जी, आपकी उपस्थिति ने हमारी कार्यशाला को और भी उत्साही और प्रेरणादायक बना दिया है। हमारे बीच आज उपस्थित है एक अन्य ज्ञानदीप, शैक्षणिक वृक्ष को सींचने और फलने फूलने में तत्पर बीटेक के सह संस्थापक के रूप में विख्यात, तिरुवनंतपुरम के गोकुलम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में वे छात्रों के भविष्य को संवारने का दायित्व संभालते हैं। उनके विचारों में ज्ञान का अमृत बसा है। अतः मैं हार्दिक आमंत्रण करती हूँ श्री बिजू एस पिल्लई जी का, ताकि वे हमारे समक्ष आए और अपने मंतव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। बिजू Thank सर you. जी। Thank you. Good evening to all, respected Abdul Salam sir, Vinod sir. So every evening has got its own beauty. So today's beauty is two great personalities whom we have seen now itself. And as our director told, the importance of Hindi, especially in Hindi Pradesh. So the pronunciation is the most important thing, and moreover, the CBC is more important towards or giving seriousness towards our national language. Even in 9th standard, it has become compulsory language, 3-language formula, and also in 11th standard, which is a 2-language formula. So in every classes, the importance of Hindi and the learning of this national language and its importance, pronunciation. So giving much importance to it. We could learn more from such a great personality, Dr. Vinod Chauhan, who is a great, well-known person all over India, and even in BTAG and especially in Extra Mile, he's a permanent follower and a great guide. So it's a great honor to be here along with us, sir. Good evening once again. So wishing all the educators a great day today. I remain. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विनोद सर, क्षमा चाहती हूँ यदि मुझसे कोई गलती हुई हो। नहीं, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज आपका परिचय कुछ अलग अंदाज में पढ़ने जा रही हूँ। जी। पधारे विनोद प्रसून जी, ज्ञान के दीपक, हृदय है पुलकित जिनके नाम से ही, प्रेरणा स्रोत शिक्षकों के शांत करता, खोलते द्वार सुलझाते मन की हर भीत, लयबद्ध नवाचारों के जादूगर, यूट्यूब के राग गुनगुनाते वे सदा, और सदा हम सभी उनके साथ गुनगुना रहे हैं। 28 वर्षों से शब्दों पर राज किया जिन्होंने, दिल्ली पब्लिक स्कूल के वे ज्ञान के भंडार, हिंदी व्याकरण सरल बनाते, अध्यापक मुस्कुराते, विद्यार्थी गुनगुनाते, न्यू सरस्वती में चमकते नाम से, आकाशवाणी से दूरदर्शन शब्दों को जीवंत बनाते, प्रणय प्रसून हिंदी भाषा सेवा सम्मान, स्टार रिसोर्स पर्सन एकलव्यम हिंदी सेवी सम्मान, सरस्वती शिक्षक सम्मान, उपलब्धियों की सूची, नदी नहीं समंदर लीला है इनकी महान। आज आपका समय सौभाग्य से कम नहीं, ज्ञान गंगा में डूबने को लालायित, शिक्षक के नए अध्याय, लयबद्ध शब्दों, सरल व्याकरण और अनंत ज्ञान। जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम सभी स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद प्रसून जी सर का। सर, अपने मंच आपके हवाले। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सलाम सर, बिजू सर, सुनीता बहन, आदरणीय गगन पटनायक जी एवं अन्य सभी भाई बहन, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, बहुत दिनों बाद
मुलाकात हो रही है तो मैं गदगद हूँ। यह अवसर पुनः मिला है आप सबसे मुलाकात करने का, और निश्चित रूप से सलाम सर ने अवसर दिया, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आपकी उपस्थिति गौरवान्वित करती है मुझे, आपकी उपस्थिति से मैं आज भी अभिभूत हूँ। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, और सबसे पहले अपने आराध्य को नमन करते हैं। सभी अपने अपने आराध्य को नमन कर लें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारा कार्य फलित होता है। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। आज का विषय बहुत ही अच्छा है, हम इस विषय पर बातचीत अब करेंगे, और आपके साथ जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि हाँ, मतलब जो एनसीएफ की संस्तुतियां हैं कैसे हमारे शिक्षण में चार चांद लगा देंगी, अगर थोड़ा सा हम कहीं उसका ध्यान रखें, उन संस्तुतियों का, उन दक्षताओं का, तो निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षण प्रभावी है ही, और भी अधिक कहीं प्रभावी बन जाएगा। सबसे पहले आपकी निष्ठा को नमन कर रहा हूं इस गीत के माध्यम से। आप देखिएगा, शिक्षक का जीवन प्रकाश का खिला खिला प्रतिमान है, शिक्षक का जीवन प्रकाश का खिला खिला प्रतिमान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, पल पल सीखे नदी ज्ञान की बनकर वह बहता रहता, पल पल सीखे नदी ज्ञान की बनकर वह बहता रहता, श्रेष्ठ वही अध्यापक खुद को अध्येता जो है कहता, श्रेष्ठ वही अध्यापक खुद को अध्येता जो है कहता, युग जो मांगे वह युग को दे ऐसा वह दानी होता, दक्षताएं जीवन कौशल सब बच्चों के मन में बोता, नवाचार वह शोध स्वयं वह खुद अनुसंधान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, वह गढ़ता व्यक्तित्व अनूठे युग आकारित होता है, उसकी लिखी इबारत से हर स्वप्न प्रकाशित होता है, वह नव युग को नव विचार नव दृष्टि नया चिंतन देता, संस्कार महके जिनमें वह वही खिले उपवन देता, उसको सम्मानित कर गर्वित होता खुद सम्मान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, मन की कोमल क्यारी में वह आदर्शों को बोता है, सही मानिए इस जादू का असर प्रभावी होता है, नहीं पाठ बतलाता केवल प्रश्नोत्तर बताने का कार्य हम नहीं कर रहे हैं, केवल पाठ सपाट तरीके से पढ़ाने का कार्य भी हम नहीं कर रहे हैं, तो नहीं पाठ बतलाता केवल जीवन पथ भी दिखलाता, मानवता के मूल्य सदा ही संग पाठ के सिखलाता, मन को दिशा दिखाने वाला शिक्षक प्रेरक गान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है, शिक्षक खुद है एक तपस्या और स्वयं वरदान है। अब आपसे जुड़ता हूं, आप बताइएगा कि आपको यह गीत कैसा लगा। उसके बाद शुरू करते हैं कार्यशाला है। चैट बॉक्स खोलता हूं, आपसे सीधे संवाद करता हूं। देखिए, आपसे संवाद का माध्यम चैट बॉक्स है या फिर सुनीता बहन है ना, तो आप जो भी, हाँ देखिए आने लगी टिप्पणी, संवाद हो गया है ना, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। संवाद होने लगा। आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी निष्ठा को मैंने इस गीत में नमन किया। वास्तव में जो युग की हमसे मांग होती है हम उसको पूरा करते हैं, अपने शिक्षण में उसको उतारते हैं, है ना। आज युग की मांग है, एनसीएफ की मांग है ना, निपुण भारत मांग कर रहा है, और साथ में जो प्रभावी भाषा संप्रेषण है वह भी मांग कर रहा है। तो युग की जो मांग है हम उसको युग को देते हैं, देते आए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले छंद में वही लिखा था जहां मैं कह रहा हूं कि युग जो मांगे क्या करता है शिक्षक, युग जो मांगे वह युग को दे ऐसा वह दानी होता, और दक्षताएं जीवन कौशल सब बच्चों के मन में बोता। तो बात वहीं से शुरू कर रहे हैं, दक्षताओं की बात कह रहे हैं।
है ना। और जो संस्तुतियां हैं उनकी बात कह रहे हैं। आप देखिएगा कक्षा 1 एवं 2 के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले हम यहीं से संवाद शुरू करते हैं। एनसीएफ बुनियादी स्तर एवं निपुण भारत प्रभावी भाषा संप्रेषण में जो वर्णित दक्षताएं हैं, संक्षिप्त रूप में, बहुत विस्तार से होगा तो केवल वो पढ़ते हुए रह जाएंगे। हमें केवल जो मुख्य हैं यहाँ पर मैं उनको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनके साथ कैसे हमें शिक्षण करना है, कैसे पाठ को विस्तार देना है, आज बात हम उस पर कर रहे हैं। और आपकी गरिमामयी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी तो मुझे अभिभूत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद। आप देखिएगा, देखिए सबसे पहली बात, निपुण भारत में जहां उद्देश्यपूर्ण लेखन और प्रारंभिक साक्षरता कौशल की बात कही गई है, वहां सुलेख तथा सही वर्तने की प्रेरणा हमें देनी है बच्चों को, है ना। उद्देश्यपूर्ण लेखन, प्रारंभिक साक्षरता कौशल, तो कहीं सुलेखाभ्यास, वर्णों से प्रेम, भाषा से प्रेम करना सिखाएं। सही वर्तनी का ध्वन्यात्मक जागरूकता कैसे लाएंगे, दो वर्णों के बीच में कैसे अंतर बताएंगे, सब हमें प्रारंभिक स्तर पर करना है। पाठ से जुड़ी व्याकरणिक अवधारणाओं को ध्वन्यात्मक जागरूकता का सहज युक्तियों के साथ खेल खेल में विकास करना, यह भी निपुण भारत की संस्तुति है, दक्षता है, ध्वन्यात्मक जागरूकता। एनसीएफ-सी 10.1 सहज व्याकरणिक बोध व ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करना। शब्द भंडार के विकास हेतु प्रेरित करना, तो निपुण भारत में शब्द भंडार का विकास के लिए आह्वान किया गया है। एनसीएफ-सी 9.7 कहता भी है अभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त शब्दों की दक्षता होनी चाहिए बच्चे के अंदर। अब आप देखें आगे, अगर देखेंगे तो कहानी, कविता, श्रवण में पठन के प्रति रुचि जगाना तथा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो निपुण भारत जो पाठ्यचर्या लक्ष्य है, जो सीजी है, तो समझ के साथ सुनना व पढ़ना। अब इसमें भी हम देखें तो जो रुचिपूर्वक श्रवण व सराहना, सी 9.5, 10.9, ECL 1, 5.1, अगर धारा प्रवाह संवाद और जो दक्षता उसकी समझने की दक्षता, और कहानी कविता पढ़ाते समय संवाद के लिए प्रेरित करना, ये दूसरा हम ध्यान रखें। इसी प्रकार इसमें भी जो जो कॉम्पिटेंसी हैं यहाँ पर वर्णित हैं, आप देख ही रहे, सी 9.3, 9.4, 9.5। तो कविता और कहानी को समझने की दक्षता विकसित करना, उनके साथ अधिकाधिक संवाद करना। तो धारा प्रवाह संवाद का गुण, बातचीत का गुण कैसे आएगा जब हम अधिकाधिक संवाद करेंगे। पाठ चल रहा है, पाठ के बीच में बहुत सारे अवसर होते हैं जहां हम बच्चों के साथ प्रत्यक्ष जुड़ जाएं और उनके साथ हम संवाद करें, वहां कल्पनाशीलता बढ़ती है ना, भाषिक दक्षताएं विकसित होती हैं। तो ऐसे कविता कहानी के अंदर से कहानी बनाने के लिए प्रेरित करना, कोई नया पात्र डाल देना, कविता बनाने की दक्षता विकसित करना, तुकांत शब्दों से परिचय करवाना। तो जो एनसीएफ की सी 9.5, 9.6 इसी का आह्वान करती है, कविता को कैसे आगे बढ़ाएं, है ना, कोई छंद अपना जोड़ना या अन्य तुकांत शब्दों के सहारे कविता को लिखना, अपनी कोई कविता बुनना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, और जो प्रभावी भाषा संप्रेषण है उसको भी अगर हम देखें, तो औपचारिक भाषा में भावों को प्रकट करना, मुख्य रूप से मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इसमें पीपीटी में, उसको देखिए। फिर हम कैसे पाठ को ढालेंगे, इनमें कैसे इन दक्षताओं को पिरोएंगे पाठ के अंदर, कला वह है जो युग आह्वान कर रहा है, जो एनसीएफ आह्वान कर रहा है, उसको कैसे हम शिक्षण में उतारें, कैसे पाठ को विस्तार दें, तो पाठ के अंदर उन दक्षताओं का विकास कैसे समाहित कर दें, आज हम अपनी किसी पसंदीदा कहानी के पात्र के बारे में बात करना बच्चे के साथ, है ना, उसकी तस्वीर बनाकर उसका नाम लिखना, संदर्भों के अनुसार कहानी सुनाना, अपनी भाषा में कविता पाठ करना, हाव भाव सहित उसको दोहराना, बच्चों को कक्षा और विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये भी ECL 1, 5.3 भी कहती है। बच्चे की पसंद की कहानी कविता सुनना या फिर सुनाना, अगर कोई बच्चा सुनाने के लिए तैयार है तो उसको हम पूरी तरह से सम्मान देते हुए उसको कहें कि वह अपनी कहानी प्रस्तुत करें। अगर सुनने का भी आग्रह कोई बच्चा कर रहा है तो उनको हम कहानी सुनाएं। लयबद्ध शब्दों का प्रयोग करके, अब देखिए लयबद्धता अनिवार्य रूप से जोड़ी है, जो लयात्मक नवाचार है उसका ध्यान एनसीएफ की संस्कृति में रखा गया है। गीत का निर्माण करना, है ना, तुकांत शब्द, तुकांत वाले शब्द जैसे जिनमें मिलती है, उन शब्दों से गीतात्मक शैली की पहचान करवाना आदि।
इसी प्रकार आगे देखें तो चित्र कहानी को ध्यान से देखना, उसके पात्र और घटना के बारे में बोलना, परिचित संदर्भों या बाल रचनाओं के पठन हेतु प्रेरित करना बच्चों को, बच्चे के हाव भाव को समझना तथा उनकी पसंद नापसंद के पर आधारित प्रश्न पूछना, पठन पर जोर देना, है ना, किसी कविता कहानी के पात्र के विषय में बात करना और वाक्य में उचित शब्दों का प्रयोग करना और अलग अलग भावों को समझना। अब आपने देखा इतनी सारी दक्षताएं यहां से चली, मैंने मुख्य ली हैं, पूरी अभी इसमें लगभग पूरी समा गई हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनको हमने यहाँ पर ले लिया है और बात भी हमने सभी की कर ली है, लगभग सभी दक्षताओं के विकास की हमने यहाँ पर बात की अभी, है ना। तो अब देखिए कैसे पाठ उसी स्तर के अनुकूल होने चाहिए, पाठों का चयन उसके अनुकूल होना चाहिए कि जो दक्षताएं दी हुई हैं। अब देखिए इसमें संवाद के कितने अवसर हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, रोटी अगर पेड़ पर लगती तोड़ तोड़ कर खाते, तो पापा क्या गेहूं लाते और उन्हें पिसवाते, रोज सवेरे उठकर हम रोटी का पेड़ हिलाते और रोटी गिरती टप टप टप, उठा उठा कर खाते जी, उठा उठा कर खाते। सुनीता बहन, कितने अवसर हैं इसमें संवाद के बच्चों के साथ? बहुत है सर, बहुत वास्तव ही बेहतरीन कविता। है ना। तो बहुत अच्छी धारा प्रवाह संवाद की दक्षता लानी है बच्चों को एक चित्र दिखा दें, इस कविता को सुना दें, 8 पंक्तियों की कविता है लेकिन संवाद कितने हैं? क्या लाभ होगा इससे? मम्मी को क्या लाभ हो जाएगा, है ना, पापा को क्या लाभ होगा? क्या मतलब रोटी यहां से मिल जाएगी तो बना रसोई का जिंदगी। तो कहीं प्रयोग करना पड़ेगा ना, उसका तो उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन काम कम हो जाएगा, है ना। और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं कि पेड़ पर उगे, है ना। ये तो रोटी की आपकी कल्पना की कवि ने, निरंकार देव सेवक जी ने रोटी की कल्पना की, आप किसकी कल्पना कर रहे हैं इस आधुनिक युग में, है ना। तो बच्चे अपनी कल्पनाशीलता से उत्तर देंगे कि वो ऐसा पेड़ चाहते हैं जिस पर ये लगे, कोई कहेगा पैसे लगे, है ना, फिर हम मनचाही चीज खरीद लेंगे। यानी कल्पनाशीलता के विकास के भी अवसर हैं, संवाद के भी अवसर हैं, है ना। हर बच्चा संवाद करेगा, अच्छा लगेगा। जो बच्चा कम बोलने वाला भी है ना, आप उससे भी पूछेंगे इस पर आधारित प्रश्न, तो वह भी कहीं आप प्रेरित करेंगे, आपकी प्रेरणा साथ होनी चाहिए। तो जो कम बोलने वाले भी बच्चे हैं वे भी कहीं ना कहीं संवाद में शामिल हो जाएंगे। तो अधिकाधिक हम संवाद करें बच्चों के साथ, ऐसे पाठ चयन हमें करने हैं, पढ़ाना है। कई बार संवाद के अवसर ढूंढने तो हम अपने आप भी लाएं, कुछ कविताएं, कुछ कहानी उनको लेकर आए। अब आप देखिएगा शादाब आलम जी की कविता अभी कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई, और आभार शादाब आलम जी का, और बधाई भी उनको कि उन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी है। अब देखिए इसमें भी कहीं संवाद के अवसर हैं, जल बोले या पानी बोले या बोले बस नीर, हवा कहें या पवन कहें हम या बस कहें समीर, सांझ कहें या कहें संध्या या बस बोले शाम, एक चीज के क्यों होते हैं इतने सारे नाम, इतने सारे नाम। अब बच्चों से पूछेंगे इतने सारे नामों का फायदा क्या है ना, इतने सारे नाम होने का फायदा क्या है, क्या उससे लाभ है या उससे नुकसान है? बच्चे अपने अपने तरह से उत्तर देंगे, है ना। तो यहाँ पर खूब, और आप दरवाजे को और क्या कहते हैं, आप रोटी को और क्या कहते हैं, है ना, आप पेड़ को और क्या कहते हैं। तो ऐसे करके कहीं भाषिक दक्षताएं विकसित होती हैं, जो निपुण भारत में कहा गया शब्द भंडार का विकास। कहीं हमारे पास केवल ऐसे नहीं कि हमने कह दिया बेटा इतने पर्यायवाची याद करके लाने, एक शब्द रोजाना याद करना है, शब्दकोश देखना है, नहीं, कहने भर से नहीं होगा। उनके साथ कहीं जुड़ना है, गतिविधियां करवानी है। अगर दक्षता विकास करना है तो सही अर्थों में हमें इस प्रकार की कविताओं, इस प्रकार के पाठों का चयन अपनी पुस्तकों में करना चाहिए। अगर ऐसे पाठ होंगे और ऐसी पुस्तकें अगर आकार लेंगी जो दक्षता आधारित पाठों को लिए हुए हैं, जिसमें संवाद के अवसर हैं, जिसमें दक्षता विकास के अवसर हैं, कल्पनाशीलता का विकास है ना, शब्द ज्ञान है, तो अपने आप में किताब श्रेष्ठ हो जाएगी। तो इस प्रकार के हमें पाठों का ध्यान रखना है। जैसे शादाब आलम जी की यह कविता है या निरंकार देव सेवक जी की कविता है, छोटे बच्चे हैं प्रथम और द्वितीय कक्षा के, उनके साथ हम भरपूर संवाद इसमें कर सकते हैं। व्याकरणिक अवधारणाएं इसी में से निकलकर सामने आएंगी। नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं बेटा बताएं, इसमें नाम वाले शब्द निकल के आ गए, पर्यायवाची भी निकल के आएंगे। रोटी को और आप क्या कहते हैं, आप पेड़ को और क्या कहते हैं बेटा, है ना। तो इस प्रकार आप संवाद कर सकते हैं बच्चों से। यहां तक आपको कैसा लगा? दक्षता विकास होगा प्रथम और द्वितीय कक्षाओं में। दक्षता विकास के लिए जो
कहा गया है एनसीएफ में, हम पूरा कर पाएंगे ना? बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, पाठों का चयन अच्छा हो, हम थोड़ा सा गृह कार्य करके आए और बस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताएं? कृतिका जी बिल्कुल का सुंदर सा, कृतिका बहन ने बहुत सुंदर टिप्पणी दी, रेणु दैया जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब जुड़े हुए हैं। सर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चों की मानसिकता को एक बहुत ध्यान में प्यारी रखना सी जरूरी टिप्पणी है। आई। जी 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 सर। जी, इस तरह बच्चों की रचनात्मक क्षमता का भी विकास होगा अवश्य। बिल्कुल। और कहीं ना, ना कहीं उनकी मानसिकता है, बच्चे छोटे हैं, छोटी कविताएं, बिल्कुल तुकान शब्द भी आ गए, पर्यायवाची भी आ गए, आपने व्याकरण भी पढ़ा दी बच्चों को, जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बच्चा उत्साह, एक ही 5-6 पंक्तियों में बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया। जी, उसे अगला प्रारंभ, इंतजार रहेगा, जी अगली कक्षा का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और प्रारंभिक कक्षाओं में ना तो होना ही है चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, हम ऐसा कार्य दे देते हैं जो नीरस होता है और भाषा के प्रति अरुचि की शुरुआत हो जाती है, बहुत गड़बड़ होता है। प्रारंभिक कक्षाएं हैं, बच्चे का मन लगना चाहिए भाषा में, उसे आनंद आना चाहिए भाषा की कक्षा में, उसे लगे कि आनंद आ रहा है भाषा की कक्षा में, है ना? तब कहीं हम उसके अंदर भाषाओं की दक्षता विकसित कर पाएंगे, भाषिक दक्षताएं विकसित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक नवोन्मेष हिंदी पाठमाला में इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो पुस्तक है, और यहाँ पर हमने जहां जहां उससे संबंधित कुछ सामग्री डाली है, या जो दक्षताएं हैं उनका उल्लेख किया है, जहां जहां उसको दिखाया है, जहां उस प्रकार की दक्षताएं आई हैं उनको भी टैग किया है। तो इसी प्रकार आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी व्याकरण पुस्तक है सार्थक हिंदी व्याकरण, जहां इस प्रकार के नवाचारी प्रयोग हैं। तो एक बार आपकी पारखी दृष्टि इस पर पड़ेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दक्षता को पूरी तरह से आधार बनाकर जो निपुण भारत की संस्तुतियां हैं प्रारंभिक कक्षाओं में, है ना, या जो एनसीएफ की संस्तुतियां हैं पूरा माध्यमिक स्तर पर या प्राइमरी स्तर पर, बुनियादी स्तर पर, सब में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। तो एक बार आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप इनको देखिएगा एक बार, आपकी जो सुझाव होंगे वो निश्चित रूप से हम फिर उसमें लागू करेंगे। आगे आगे देखिएगा, दक्षताधारित शिक्षा, पाठ विस्तार एवं दक्षता विकास की युक्तियां। अब देखिएगा कैसे हम पाठ को विस्तार देते हैं। आपने इस चित्र को देखा, जी सर। कहानी भी समझ में आ गई, कहानी आ गई समझ में? बहन कुछ कहना चाहेंगे इस कहानी पे, सुनीता बहन? जी सर। किस प्रकार से चूहा जो है वो जाल तोड़कर शेर को वहां से बाहर निकाल देता है, ये कहानी जो बिल्कुल ये पढ़ी। कहानी है, बिल्कुल। जी सर। अब देखिए, पाठ भी बच्चों के अनुकूल है ना, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है। और अब पाठ को विस्तार कैसे देना है, दक्षताएं कैसे उसके अंदर लानी है, आप देखिएगा। अब देखिएगा, अब इसी पाठ का कहानी का कविता में परिवर्तन, बदल दिया, उसको कविता में बदलाव किया। आप देखिएगा बच्चा आनंद लेगा। उसके बाद कैसे व्याकरणिक अवधारणाएं उस स्तर की जो दूसरी कक्षा का बच्चा आसानी से समझ सके, तो कैसे, और कविता का वो आनंद लेता है। उसे हमने कहानी में पाठ पढ़ाया है, कहानी के बाद उसको कविता में भी सुना रहे हैं, बच्चा आनंदित हो रहा है कि बेटा अभी जो पाठ पढ़ा था ना उस पर कविता भी सुनते हैं, है ना? तो ऐसे एक दिवस की बात, शेर था गहरी निद्रा में सोया, चेहरे पर मुस्कान आ रही शायद सपनों में खोया, इतने में एक नटखट चूहा चढ़ा पीठ पर इतराया, ताग धिना दिन करके नाचा, मजा बहुत उसको आया, उछल कूद और जी भर मस्ती में कितना सुख पाता था, बीच बीच में चूं चूं कर अपनी ही धुन में गाता था, खर्राटों की खरखर सुनकर वह नाक के पास गया, उसकी खटक पटक से जंगल का राजा फिर जाग गया, पंजे में आ गया शेर के, चूहा अब घबराता था, कैसे पंजे से छूटे वह उसे समझ ना आता था, कान पकड़कर चूहा बोला, सिंहराज अब माफ करो, अपनी गलती मान रहा मैं, अब ना मेरे प्राण हरो, यह सुन चूहे को छोड़ा था, दया शेर को आई थी, छूटा पंजे से चूहे ने, दिल में राहत पाई थी, कभी जरूरत अगर पड़ी तो काम आपके आऊंगा, यह उपकार नहीं भूलूंगा, इसका कर्ज चुकाऊंगा, चूहे की यह बात सुनी तो शेर हंसा बोला ऐसे, है इतना सा चूहा मेरी मदद करेगा तू कैसे? अब बच्चों से पूछना है, बेटा शेर की भाषा अच्छी थी, शेर ने अच्छा कहा या बुरा कहा? अच्छा नहीं कहा ना, है ना? बच्चे छोटे बच्चे हैं, उत्तर देंगे हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था शेर को, है ना? तो संवाद, संवाद के अवसर अधिकाधिक हों।
सोच सोच चूहे की बातें, शेर बहुत मुस्काता था, चूहा उसकी मदद करेगा कहकर हंसता जाता था। कुछ दिन ही बीते होंगे बस समय मदद का आया था, जंगल में आ गए शिकारी आकर जाल बिछाया था। घूम रहे थे सिंहराज फंस गए जाल में बेचारे, कोशिश की जी तोड़ बाद में बिल्कुल ही हिम्मत हारे। खूब दहाड़े लेकिन कोई पशु न पक्षी आया था, जाल कुतरते चूहा देखा वह मन में हर्ष आया था। फिर संवाद के अवसर, क्यों नहीं आया कोई पशु पक्षी? इतना दहाड़ रहा है शेर, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कैसा व्यवहार है ना? तो बच्चे संवाद करेंगे, बताएंगे क्यों नहीं आ रहा है। जाल कुतरते चूहा देखा वह मन में हर्ष आया था, छूट गया जब शेर यूं बोला तुमने जान बचाई है, पहले जो भी कहा है मैंने उस पर लज्जा आई है। हम हैं सच्चे मित्र पीठ पर बैठो तुम्हें घुमाता हूँ, नहीं किसी को छोटा जानो मैं सबको बतलाता हूँ। प्यारे बच्चों इस कविता से क्या सीखा बतलाना जी, सोच सोच कर इस कविता को थोड़ा और बढ़ाना जी। कैसे मौज मस्ती करते होंगे बाद में वो, उनकी भी बात कर दें तो कविता को आगे बढ़ा देना बेटा, है ना? तो ऐसे करके आपने संवाद किया, छोटे बच्चे हैं उनसे संवाद किया। अब देखिए पीठ पर बैठा हुआ है यहाँ पर, यही चित्र कविता में उतर गया, है ना? तो कहीं हम दक्षता विकास के लिए भरपूर प्रयास हम करें, सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, है ना? अब देखिए, अब बच्चों से कह रहे हैं बेटा शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे हल्की सी चीख सुनाई दी, एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। अब ये जो चिन्हित है ये क्या है? ये 3 जगह चिन्हित हुए, ये क्या है? तो अब उनसे संवाद कर रहे हैं बेटा ये क्या होते हैं, है ना? जगह जगह ये जो आए ये क्या होते हैं? भाषा की गाड़ी में मेरा ब्रेक सरीखा होता काम, छोटे छोटे चिन्हों वाला मैं भाषा का मित्र विराम, मैं भाषा का मित्र विराम। पूर्ण विराम क्या कह रहा है? कह रहा है मैं वाक्य पूरा होने पर लगता हूं। देखना वाक्य पूरा हुआ क्या? शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, हाँ वाक्य पूरा हो गया, यहां आ गया। तो बच्चों के साथ हमें व्याकरणिक अवधारणाएं भी पाठ विस्तार में देनी है। अब देखिए यहाँ पर अल्प विराम ने भी अपना परिचय दे दिया, है ना? मैं वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करता हूं और हाँ या नहीं के बाद भी लगता हूं। मैं कुछ अन्य जगहों पर भी आता हूं, आप खोज कर बताना वे जगह कौन सी है। तो आपने बच्चों के साथ संवाद भी कर लिया। योजक चिन्ह आया, पशु पक्षियों में आया, भागा भागा आया, जल्दी जल्दी में आया, जोर जोर से में आया। अब बच्चों को बताया मैं 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता हूं। अब देखिए विराम चिन्हों की पहचान और प्रयोग, दक्षता 10.2, हम कहीं उसके ही निकट हैं। जब हम व्याकरणिक अवधारणाएं करवा रहे हैं तो 10 यहां पर हमें दक्षता का ध्यान है, बोध है, हमने करवा लिया। ध्वन्यात्मक जागरूकता या हमें अन्य व्याकरणिक अवधारणाओं को सिखाना हो, हम बड़े आसानी से सिखा सकते हैं, है ना? चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, वो पुस्तक बस्ता या बाजा, अन्नू शालू या राजा, खिड़की दरवाजे या छत, दिल्ली मुंबई पानीपत, बचपन आदत हरियाली, पेड़ तना पत्ते डाली, शेर बाग चिड़िया हाथी, नाम है संज्ञा का साथी। ये सब नाम बताते हैं, सब संज्ञा कहलाते हैं जी, सब संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों से हम व्याकरण भी, खेल खेल में व्याकरण हो रहा है। कहीं ध्वन्यात्मक जागरूकता आ रही है। जौ वाले शब्द कौन से हैं, जौ वाले कौन से आए? जौ में आया पंजे, जाल, जंगल, अजगर, जल्दी जल्दी। और जौ वाले कौन से आए? जोर जोर से, है ना, आजाद आदि। तो इस प्रकार अगर हम करें, अब देखिएगा आप एक कविता देखें, सर्दी गर्मी का गोदाम, यह कविता है, यह कविता है राष्ट्रबंधु जी की। आप इसमें देखिएगा, इसमें तीनों आए, श भी आया, श भी आया और स भी आया, यानी दंत, तालव्य और मूर्धन्य तीनों श आए। अब बच्चे को हमें पहचान करवानी है, तो यहीं से हमने व्याकरण ले लिया। व्याकरणिक अवधारणा को ध्वन्यात्मक जागरूकता, अनुभवात्मक अधिगम, लयात्मक नवाचार, तीनों चीजें आ गई। जहां कह रहे हैं कि लयात्मकता के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां संस्तुति है, वहां दक्षता है। देखिए आप देखिएगा, ऊपर के दांतों से ऊपर मुंह का हिस्सा जान लिया, बहुत गर्म खाने से जलता यह हिस्सा पहचान लिया। श बोलो जब हवा इसी हिस्से को छू कर आती है, इसके उच्चारण की हमको यह पहचान कराती है।
शौ में मुंह की छत को थोड़ा जीभ छुआ करती है जी, शौ से थोड़ी सीटी गाढ़ी अधिक हुआ करती है जी, बस दांतों को जीभ छू रही, सौ में ना कुछ कठिनाई, जान लिए शौ शौ सौ हमने, समझ हमें सबकी आई, शौ से शरबत शौ से शोहरत, शौ की शान निराली है, भाषा भाषण में शौ आए इसी बात पर ताली है, सुबह में स है सुबह में सौ है, सौ से सर्दी सौ से सैर सपाटा है, शुद्ध सही बोलेंगे इनको, मन का यह डर काटा है, मन का यह डर काटा है, मन का यह डर काटा है। तो भरपूर व्याकरणिक अवधारणाएं, ध्वन्यात्मक जागरूकता और जो कौशल है, अभिव्यक्ति कौशल, चिंतन क्षमता, कल्पनाशीलता, शब्द भंडार, सभी कुछ आपके शिक्षण में सिमटता हुआ आ जाएगा, है ना, आएगा। हम सब मेहनती हैं, हम सब जो भाषा के सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं, निष्ठावान सेवक हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उतर कर ना आए दक्षताएं, दक्षताएं उतर कर शिक्षण में आएंगी, शिक्षण से वो अधिगम तक पहुंचेंगे, अधिगम से फिर वो बच्चे के मन में उतर जाएगी, है ना। तो हमें करना है, अधिगम को सहज बनाना है, केंद्रिक दक्षता का विकास करना है ना, कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। इसी प्रकार के आगे भी बहुत सारे हैं। अब देखिए तो थ और द ध, इनमें परेशानी होती है बच्चों को। आप देखिए टंग ट्विस्टर भी है, बहुत जगह कहा गया है कि टंग ट्विस्टर का प्रयोग बच्चों के मन को बहुत अच्छा लगता है ना, टंग ट्विस्टर होना चाहिए, है ना। देखिए तीन तोड़ तैयारी तेजी 13 तिथियां तंगहाली, तिल भर तिनका ताजमहल तूफान तरावट तरुताली, थर्मस्थाना थोड़ा थुलथुल थैली व्यथा कथा थाली, चौथा दोनों जाने हमने इसी बात पर हो ताली, दिन कर दीपक दिवस दूसरा दिल दुनिया दिल्ली दानी, धूप धूम धुन धुन धनुष धुलाई धन्यवाद धनिया दानी, दौ भी जाना इनकी सूरत पहचानी, इन्हें दंत से प्रेम बहुत है बात पते की है जानी, तद थोड़ा नरम नरम है, थ ध कर्कश जानो जी, शब्द बोलकर देखो इनको, खेलो फिर पहचानो जी, खेलो फिर पहचानो जी। तो आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड पर हम बातचीत कर रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे 3, 4, 5। आपको कैसा लगा? पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए आपको कैसा लगा? दक्षता विकास होगा या नहीं होगा? हमारे बच्चे भाषा में रुचि लेंगे, रुचि पूर्वक कहेंगे कि हाँ हमें हिंदी पढ़नी है ना। ऐसा नहीं, हिंदी का पीरियड आएगा और वो खुशी से उछल पड़ेंगे कि हाँ अब जो है मैम आने वाली है या सर आने वाले पढ़ाएंगे, है ना। तो आप बताइए कैसा लगा आपको, मैं आपसे संवाद करूं। बहुत ही बढ़िया, आपका सर हृदय दिव्या जी कह रही हैं कि सर प्लीज टेक डेली 1 hour क्लास, इट्स सो इंस्पायरिंग। जी जी जी, धन्यवाद बहुत सुंदर। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आज आप सब सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, अब इसको देखें, अगर हम CG1 विचारों को सुसंगत रूप से समझने और संप्रेषित करने के लिए जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करते हुए मौखिक भाषा कौशल विकसित करते हैं, ये जो करिकुलम गोल है, पाठ्यचर्या लक्ष्य है। अब इसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी आई वो कौन कौन सी आई? यहां भी धारा प्रवाह संवाद है। देखिए बच्चे से भी हमें धारा प्रवाह संवाद करने, थोड़े बड़े हो गए, प्राइमरी स्तर पर मतलब जो अब NCF जो प्राइमरी स्तर वाला है, वहां पे भी अगर हम देखें तो ये हैं 3, 4, 5 में विभिन्न संदर्भों में धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करते हैं, पढ़कर सुनाई गई सामग्री से मुख्य विचार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अब ये कला कैसे, मतलब दक्षता कैसे विकसित होगी? जब हम पाठ को इसी नजरिए से देखने लगेंगे, दक्षता के नजरिए से, कि हाँ हमें अपने बच्चों के अंदर भाषा कौशल विकसित करने, भाषा की ये जो दक्षताएं हैं इनको विकसित करना है। पढ़कर अब मौखिक प्रस्तुतियां, कक्षा चर्चा, छोटे छोटे स्वागत नोट, छोटे आयोजनों का, है ना, संचालन, ये विभिन्न प्रकार की पाठ्य वस्तुओं को समझने के लिए विविध बोध युक्तियों, है ना, कल्पना करने, निष्कर्ष निकालने आदि का अनुप्रयोग करते हैं। ये परिचित अपरिचित पाठ्य वस्तु जैसे गद्य और पद्य के, है ना, ये बुनियादी समझ विकसित करके अर्थबोध सहित पढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर हम इनका ध्यान रख के अगर हम कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में
ये दक्षताएं उतरेंगी और बच्चे तक पहुंचेंगी, है ना। इनको ध्यान में रखना है बस, और उसके अनुसार पाठ को ढालना है। आगे देखिएगा। बहन पढ़ेंगी क्या? सुनीता बहन? अवश्य सर। धन्यवाद। सर यहाँ से अपनी समझ से जी जी। अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए सरल और यौगिक वाक्य संरचनाओं को लिखने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके अंतर्गत क्रमबद्धता, शीर्षकों, उपशीर्षकों की पहचान, प्रारंभ और अंत तथा अनुच्छेद निर्माण की लेखन युक्तियों का उपयोग करते हैं। दिए गए किसी विषय या अवधारणा अथवा किसी पाठ्य पुस्तक के पठन बोध को व्यक्त करते हुए स्पष्ट और सुसंगत अनुच्छेद लिखते हैं। समुचित जानकारी और प्रयोजन से पोस्टर, निमंत्रण, सरल कविताएं, कहानियां और संवाद रचते हैं। अपने लेखन में उपयुक्त भाषा, व्याकरण और संरचना का उपयोग करते हैं। CG4 विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न संदर्भों, घर और स्कूल के अनुभव में व्यापक शब्द भंडार विकसित करते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों के अर्थों पर चर्चा करते हैं और विभिन्न प्रकार की पाठ्य वस्तु को सुनकर और पढ़कर शब्दावली विकसित करते हैं। पढ़ने में रुचि और प्राथमिकताओं को विकसित करते हैं। पुस्तकालय से नियमित रूप से पुस्तकें लेकर उन्हें पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत उत्तम है, धन्यवाद। क्योंकि छात्र पुस्तकालय तो जाते लेकिन हिंदी की पुस्तकें नहीं उठाते। अगर हम उससे रिलेटेड अगर बिल्कुल अच्छी पुस्तकें लाके अगर रखेंगे, और पुस्तकालय को अगर हम जो आधुनिक बाल साहित्यकार हैं, डॉक्टर अजय जन्मेजय, डॉक्टर दिव्य रमेश जी, नागेश पांडे जी, है ना, इन सबकी पुस्तकें अगर हों तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं रुचि लेंगे। देवेंद्र मेवाड़ी जी, है ना, तो जाकिर अली जी, शादाब आलम जी, फहीम अहमद जी, बहुत सारे नाम हैं जो वास्तव में कमाल कर रहे हैं बाल साहित्य में। इन सब की, संजीव जायसवाल जी, उनकी चंदा गिनती भूल गया, हर बच्चा पढ़ना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इन पुस्तकों को हम अपने पुस्तकालय में स्थान दें। वास्तव में हमारा पुस्तकालय समृद्ध हो जाएगा, बच्चों को भाषा विकास में मदद करेगा। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8 में देखें, फिर देखें कि कैसे प्रयोग करते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में देखें, एक बार बहन इसको पढ़ेंगी? जी सर। माध्यमिक स्तर में वर्णित आधारभूत दक्षताएं। प्रभावी संप्रेषण क्षमता के विकास हेतु भाषा कौशलों का उपयोग करते हुए वर्णन करना, विश्लेषण करना एवं प्रति उत्तर देना। ध्यान पूर्वक पढ़ें और सुनें। अंश समाचार पत्रों के लेखों, रिपोर्टों और संपादकीय अंश के विशेष बिंदुओं की पहचान करना और उनका सारांश बताना। विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार के आयोजनों व उनकी योजनाओं को ध्यान पूर्वक सुनना। सामाजिक अनुभवों का प्रयोग करते हुए उचित भाषा में समस्या समाधान, आरंभ, अंत, अंत आरंभ, औपचारिक, अनौपचारिक, भावानुकूलता के साथ संदर्भ की प्रासंगिकता प्रस्तुत करना। उचित शैली में विभिन्न प्रकार के पत्र, निबंध और रिपोर्ट लिखना और श्रोताओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित शब्दों का प्रयोग करना। ये बहुत आवश्यक है कि निर्धारित शब्दों में हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त उनके करें। उन शब्दावली विकसित होनी चाहिए। फिर उस जब ये 6, 7, 8 में आ गए हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्द भंडार विकसित होना चाहिए, है ना। तो और जो औपचारिक लेखन है उसकी शैली उनको आनी चाहिए, वो सही से उनको परिचय दिया जाए, तो अभ्यास करवाया जाए, कहीं ना कहीं लिखेंगे। जी। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वीडियो, ऑडियो या दोनों से संबंधित सामग्री तैयार करना। इसमें बहुत रुचि लेते हैं बच्चे। वीडियो बनाना हो, ऑडियो बनाना हो, बच्चे रुचि लेंगे। समाचार कहीं अगर हमें प्रस्तुत करवाने हैं, बिल्कुल टीवी की शैली में समाचार प्रस्तुत करना, बच्चे बना के लाते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छा ऑडियो वे बना के लाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अगर इन सबकी उनका ध्यान रखना है, अगर कहीं जो पाठ्यचर्या लक्ष्य हैं उनका ध्यान रखें, जो उसमें दक्षताएं दी गई हैं उनका ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है
कि छठी सातवीं आठवीं में हमें कहीं उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अनुप्रास इनका परिचय दे देना चाहिए। तो कहीं जब हम पढ़ा रहे हों, जब कविता पढ़ा रहे हों, तो इन जहां पर भी जिस स्थल पर आए अलग से परिभाषा रटवानी जरूरी नहीं है। जब आए तब हम बच्चों को बता दें कि हाँ यहाँ पर बेटा अनुप्रास आ गया है ना, यहाँ पर मानवीकरण हो गया, इस प्रकार। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो दक्षता विकसित होगी। अब देखिए, भाषा विज्ञान के विविध पक्षों, शब्द एवं वाक्य संरचना को समझते हुए मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। इसमें भी कितनी चीजें आई हैं, देखिए, वाक्य संरचना हो गई, विराम चिन्ह हो गए, काल, लिंग और शब्द भेदों को समझना। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इन दक्षताओं को ध्यान में रखकर अगर हम शिक्षण को ढाल रहे हैं, किसी पाठ को ढाल रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। उचित भाषा और शैली का प्रयोग करते हुए गद्य, पद्य और नाटक आदि लिखना। अब संबंधित स्रोतों के बारे में पुस्तकालय से पता लगाते हुए, देखिए, पुस्तकालय से जोड़ने का प्रयास है, विभिन्न विषय क्षेत्रों की पुस्तकों को पढ़ना, है ना, अपने आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत करना, किताब कैसी लगी। आप बच्चा कोई किताब पढ़ के आया, आपने पूछा किताब कैसी लगी, उसकी समीक्षा करवाना, आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत उनसे करवाएं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्वन्यात्मक चिन्हों को, यहाँ पर भी आपने देखा ध्वन्यात्मक जागरूकता पहली और दूसरी कक्षा में भी आई। यहां भी कह रहे हैं कि ध्वन्यात्मक चिन्हों को समझना, कि अगर छठी सातवीं आठवीं में भी हमें ध्वन्यात्मक पहचान बार बार करवानी है, जहां बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे हैं, की का अंतर है नहीं समझ पा रहे हैं, शौ का अंतर है नहीं समझ पा रहे हैं, वहां पर ढ का अंतर है नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें इस कक्षा में भी कहीं ना कहीं लिपि को, वर्तनी को और ध्वन्यात्मक चिन्हों को बहुत अच्छी तरह से उनको समझाना है। श्लेष, तुकांत, अनुप्रास, अलंकार एवं अन्य भाषिक शब्द पहेली आदि को भी इसमें करना है, भाषिक शब्द पहेली जी। तो आपने देखा कि भाषिक खेल भी खिलवाने हैं और कक्षा को आनंददायी बनाना है। जितना आनंददायी हम कक्षा को बना लेंगे, खेल के रूप में हम भाषा को लेंगे, तो हमारे बच्चे उतना ही अच्छा करेंगे। आप देखिएगा, केंद्रित दक्षता विकास के लिए विद्यार्थियों की अधिगम रिक्तताओं को आवश्यक होता है। अब क्या करें, छठी सातवीं आठवीं में 3, 4, 5 में हम क्या करें, हमने फर्स्ट सेकंड पर खूब बातचीत की। अब हम कैसे पहचाने अधिगम रिक्तताएं, क्योंकि दक्षता विकास अधिगम रिक्तताओं के बिना अधूरा रहेगा। हमने अपने बच्चों की अधिगम रिक्तताएं पहचानी नहीं, लर्निंग गैप्स नहीं पहचाने, फिर दक्षता विकास अधूरा रह जाएगा। उसका जो लक्ष्य है वह कहीं अधूरा। जी, सुनीता बहन मेरी बात से सहमत है? विनोद सर, आपका कैमरा बंद है? जी, ओके, कैमरा इज अच्छा, कैमरा बंद हो गया? या बंद हो गया? सर, हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, नाउ जी जी गुड। जी। तो जी, सुनीता बहन, जी सर। धन्यवाद सर। जी, सुनीता बहन केंद्रित आप दक्षता, सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कैसे हम अधिगम रिक्तताएं पहचानें। अधिगम रिक्तताएं पहचानने के लिए हम क्या करें, अब देखिएगा। सबसे पहली वाली अगर स्लाइड पे हम चर्चा करें, जहां पर बिल्कुल आधारभूत कुछ दक्षताएं दी थी, वहां सुलेख तथा सही वर्तनी की प्रेरणा देना आया था। निपुण भारत में उद्देश्यपूर्ण लेखन, प्रारंभिक साक्षरता कौशल में इसका उल्लेख किया गया था। और जैसा बापू ने भी कहा था, सुलेख शिक्षा में पूर्णता की निशानी है। तो कहीं ना कहीं हम छठी सातवीं आठवीं में भी और प्रारंभिक कक्षाओं में भी मतलब बोर्ड पर जो भाषा लिखी हुई है इस समय, वो उनके अनुकूल नहीं हो सकती। उनके उनके अनुकूल वाली भाषा हम लिखें, उनके अनुकूल ले आए। छठी सातवीं आठवीं के अनुकूल भाषा में बोर्ड जो दिखा रहा हूं वो छठी सातवीं आठवीं के अनुकूल है ना। तो देखिए, इस प्रकार कहीं वर्तनी की भी पहचान हो रही है, कहीं सुलेखाभ्यास प्रस्तुतिकरण अच्छा हमें आ रहा है। तो ऐसे करके आप देखिएगा, यहाँ बहुत अच्छा इस प्रकार का अगर हम लिखें, हम देखिए, मैंने कहा हम सब अध्येता पहले, अगर हमारी लाइन सीधी बोर्ड पर वैसे तो सबकी आती होगी, अगर नहीं आ रही तो हम अभ्यास करेंगे। हम अभ्यास से उस दुर्बलता को दूर करेंगे, जो है कमी उसको दूर करने में हमें कोई हिचक नहीं। तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब हमारी लाइन भी सीधी आएगी। जो मतलब अभी आरंभिक स्तर पर हैं, जो भाई बहन अभी पढ़ाना शुरू किया है, मान लीजिए श्याम पट पर सीधी नहीं आ रही है, हम लगातार अभ्यास करेंगे, कहीं ना कहीं सीधी आ जाएगी, बनावट बिल्कुल अच्छी होगी और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता है। अब देखिए कितना मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है और बच्चे कहीं ना कहीं उसको उतारते हैं। छठी सातवीं आठवीं में कहीं ना कहीं हमें 15 दिन में सुलेखाभ्यास जरूर करवा लेना चाहिए। 15-20 दिन में सुलेखाभ्यास होता रहेगा और जो कार्य दें
उसमें भी बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा सुलेखा व्यास की तरह अब आपको कार्य करके लाना है, आप मोती उतारना है, आपको कागज पर मोती बिखराने हैं। तो अगर हम ऐसे प्रेरित करेंगे तो देखिए इस प्रकार की कॉपी इसमें बदलेगी और इस प्रकार की कॉपी में बदल जाएगी। अगर जरा खराब है तो ऐसा अगर राइटिंग होगा तो यह भी आकार लेगा, ऐसा राइटिंग होगा यह भी ऐसा आकार ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं दक्षता विकसित होगी। मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब हम अधिगम रिक्तताएं पहचान लेते हैं, अधिगम रिक्तता हमने पहचान ली, अधिगम रिक्तता पहचान ली तो काम आसान हो गया, फिर हम दक्षता विकास पर ध्यान दे पाएंगे। अब हमने सुलेख पर ध्यान दे लिया, एक दक्षता तो विकसित की ना, और एक दक्षता केवल अकेले विकसित नहीं होती है। जब इसकी दक्षता विकसित होगी ना सुलेखाभ्यास की, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता भी आ जाएगी, वर्तनी का भी बोध हो जाएगा। तो ये सब साथ साथ जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कोई दक्षता अकेले नहीं आएगी, साथ में लेकर आएगी, अन्य दक्षताओं को भी कहीं मदद करेगी, उसको कहीं सहायक बन जाएगी। आप देखिएगा इस बच्चे के भाव अच्छे हैं लेकिन वर्तनी का दोष है, अधिगम रिक्तता कैसे पहचाननी है, तभी दक्षता विकास होगा। अब बच्चे की कॉपी हमने देख ली, बच्चे ने बहुत प्यारा लिखा लेकिन वर्तनी का दोष कर रहा है, प्रस्तुति अच्छी नहीं है, अब हमने नोट कर लिया, अधिगम रिक्तताएं पहचानी। देखिए कितने, आप, मेरा निवेदन है अपने सभी भाई बहनों से कि कहीं ना बच्चे को पढ़ना आवश्यक है। इसके लिए कोई प्रबंधन, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हर बच्चे को हम पढ़ सकें, और पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देना नहीं पड़ता। क्या होता है, मान लीजिए हमने उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं और साथ में हम लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, जो क्लास लिस्ट है उसके आगे नोट करते चल रहे हैं। अगर उसने तैयारियों को, अब देखिए ताई यार या लिखा तो मैंने नोट कर लिया, अब मैं बच्चे को बताऊंगा, कहीं ना कहीं बच्चा उसको सीखेगा, है ना। आगे पदेन रौ नहीं लगाता है, स्पर्श को वैसे लिखता है, दृश्य को भी मूर्धन्य श लगा देता है, की के स्थान पर की का उपयोग करता है, इस प्रकार। और देखिए यहाँ पर उसके सकारात्मक बिंदु भी हैं कि भाव बहुत प्यारे देता है, मतलब जो लिखेगा मन से लिखेगा, भाव अच्छे आते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इस बच्चे की कॉपी देखिएगा, इस बच्चे को पढ़ा तो कैसे पढ़ा। मेरा निवेदन है, पुनः निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार के प्रयास बहुत अच्छे प्रयासों में माने जाते हैं। सब कुछ दक्षता विकास भी आ जाएगा हमारे शिक्षण में अगर हम थोड़ा सा, जिस समय कॉपी चेक कर रहे हो पास में हमारी लिस्ट रखी हुई हो और हम समय समय पर नोट करते जाएं, तो ऐसा जो एक लघु शोध बनता चलता है ना। जो एक्शन रिसर्च तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन ये एक लघु शोध है, बच्चे पर किया गया शोध है, हम सारा पता लगा रहे हैं। देखिए यहां पर भी सकारात्मक बिंदु हैं इस बच्चे के, भाव एवं कल्पनाशीलता सही है, शब्द सीमा का निर्वाह भी कर रहा है ना। तो अच्छाइयां भी, और अब दक्षता विकास है, रचनात्मक लेखन की क्षमता कैसे विकसित की जाए, तो उस दक्षता विकास के लिए भाव पल्लवन सबसे अच्छा है। आपने कभी किसी समय बच्चे कह रहे हैं कि आज नहीं पढ़ाए सर, आज नहीं पढ़ेंगे, हाँ नहीं पढ़ेंगे बेटा, आज ना कविता सुनाएंगे, एक एक मुक्तक सुना रहा हूं और उसको बेटा बस आपको ध्यान में रखना है, आज पाठ्यक्रम का कुछ नहीं, आज पाठ्यक्रम नहीं। और आपने कह दिया, आपने बच्चों को सुनाया, अच्छी लय में सुनाया। देखिए कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं लेगा, यूं बैठे रहेंगे तो हमें कुछ न मिलेगा, गर तेज हवाओं से डरेंगे तो हार है, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा। आप देखिएगा मैं दक्षता विकास की बात कह रहा हूं, आप बच्चों की अब दक्षता देखेंगे ना, उन्होंने सुना, हल्की सी चर्चा हुई, उसके बाद जो बच्चों ने लिखना शुरू किया इस पर, लाजवाब गतिविधि बन गई। देखिए बच्चे के बस बच्चों से पूछा है बेटा इसमें क्या क्या कह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये 4 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है बताएं। पाठ्यक्रम का नहीं है बेटा, और जो मन में आ रहा है ना लिखें। अब बच्चे लिख रहे हैं, देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये देखिएगा, है ना, देखिएगा। मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि 35 बच्चों की क्लास और 35 के 35 बच्चे कॉपी चेक करवाने के इच्छुक थे कि सर चेक कर दीजिए, सर मैंने कैसा लिखा मुझे बताइए, मैंने कैसा लिखा। अब देखिए 28 तारीख का काम है, 28 में ये सब चेक करवाने के उसमें हो रहे हैं, 28 12 23 ये सभी चेक करवा रहे हैं, है ना। तो आपने क्या एक रुचि विकसित की, रुचि विकसित हुई तो दक्षता विकसित होगी।
आप बच्चों से संवाद करेंगे, अधिकाधिक संवाद करेंगे, बच्चों की भी सुनेंगे, तो कहीं दक्षता विकसित होगी, बच्चे आपकी बात मानेंगे और दक्षता विकास होगा। तो हमारी जिम्मेदारी बुनियादी स्तर पर थोड़ी अलग है, प्राइमरी स्तर पर थोड़ी अलग है, और माध्यमिक स्तर पर आकर एकदम अलग हो जाती है। बहुत कुछ विकसित करना है बच्चों के अंदर, भाषा से प्रेम करना सिखाना है, साहित्य से प्रेम करना सिखाना है ना। अब आगे देखिएगा, यहां पर आ गया, अब बच्चों को हमें अधिकाधिक संवाद करना है। कैसे संवाद करें? तो देखिए यहाँ एनसीएफसी 1.1, विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण एवं धारा प्रवाह संवाद करना। आपने एक चित्र दिया, समुद्र के किनारे का यह चित्र आपसे बहुत कुछ कह रहा होगा। इस चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें प्रकट कीजिए। ऐसे ऐसी गतिविधियां, अब मुझे बताएं कि ऐसी गतिविधियों से वास्तव में हो पाएगा दक्षता विकास या नहीं हो पाएगा, जो हमारा एनसीएफ हमसे आह्वान कर रहा है। बताएं, एक बार चैट बॉक्स में आ जाएं। कीर्ति जी लिख रही, मैंने भी कुछ खेल तैयार किए हैं। वास्तव में आपके खेल बहुत अच्छे होंगे और इस प्रकार बच्चे आनंदित होते होंगे। जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब जुड़े हुए, देखिए सक्रिय भागीदारी आपकी मिल रही है, तो कार्यशाला अपने आप चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहन, अगला चित्र, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बच्चों से अधिकाधिक संवाद करवाएं। 3, 4, 5 के बच्चे हैं, क्योंकि 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब देखिए, चौथी का बच्चा है, 5वीं का बच्चा है, इस चित्र को देखकर बुन देगा कहानी, है ना? जी, बुनेगा या नहीं बुनेगा? अवश्य बताएं। सर। लघु जीवों के प्रति संवेदना भी आ गई, नैतिक मूल्य भी सिखाना हमारा दायित्व है। हमने कहीं लघु जीवों के प्रति प्रेम सिखा दिया, है ना? बच्चे के जीवन चेहरे कौशल के भी, बच्चे के जी, चेहरे के भाव ही वास्तव में, जी, वास्तव में कितने प्यारे प्यारे भाव है। और बहुत देखिए तोता भी कैसे देख रहा है ना? अब इस चित्र को देखकर तो हर बच्चा लिखना चाहेगा। वही विषय आप किस प्रकार का चुन रहे हैं बच्चों को लिखवाने के लिए। अगर हम सब अच्छे विषय चुनेंगे, अच्छे चित्र लाएंगे, तो दक्षता विकास होगा। अच्छा पाठ लाएंगे, जैसे मैंने शुरू में निरंकार देव सेवक जी की कविता सुनाई, रोटी वाला पेड़, है ना? तो इस प्रकार दक्षता विकास होगा, कल्पनाशीलता बढ़ेगी, बच्चे रुचि पूर्वक उस कार्य को पूरा करेंगे जो आप दे रहे हैं उनको करने के लिए। देखिएगा, यहाँ बच्चा पूरी एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा, है ना? प्रश्न भी इसी प्रकार का दिया हुआ है। सुनीता बहन, एक बार पढ़िएगा। अवश्य धन्यवाद। सर। हर घर तिरंगा चित्र के आधार पर हर घर तिरंगा अभियान में आपने भी भाग लिया होगा और अपने घर पर तिरंगा फहराया होगा। आपके घर पर जब तिरंगा लहराया होगा, उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ होगा? इसी विषय पर अपने अनुभव कक्षा में बांटिए। देखिए सर, मैं बच्चों को, अवश्य बांटना चाहूंगी। जी एक जी जी छात्र बहन, के रूप जी में इस समय मैं अपने भाव इस पर जरूर प्रस्तुत करना एक चाहूंगी। बिटिया ने भी तो एक प्रस्तुति दी थी, ऐसी ही एक जी प्रस्तुति दी सर, थी, जी भावपूर्ण सर, जी प्रस्तुति थी सर, वह। जी सर, वो जी बहुत भावपूर्ण थी। तो वो तो कहती है ना कि मतलब एक सैनिक के नाते उसका मतलब उसकी जो कविता थी उसके भाव ये थे कि मैं चाहता हूँ कि या तो मैं जी, लड़कर आऊं या फिर इस तिरंगे में लिपट कर आऊं। तो माँ जब बहुत मेरी सुंदर घर भाव, पर, बिटिया हाँ ने बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब ऐसी जी कविताओं पे बच्चा जब उस झंडे को अपने हाथ में ले रहा है, खिड़की पर जब वो जी लगाता है, जब वो लहराता है, तो जी, झंडा तो लहराता है, बच्चे का लहराता हुआ जो चेहरा है, जो गर्व की हाँ वो, भावना है कि मेरा झंडा ऊपर लहरा रहा है, ये कहीं ना जी जी कहीं जी गर्व की, सम्मान की भावना, देशभक्ति की भावना खुद ब खुद बच्चे के अंदर आ जाती है। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। आगे देखिएगा, छठी, 7वीं, 8वीं में इस चित्र को दे दीजिए। प्रतीकात्मक चित्र है, बच्चों को माँ भी याद आएगी, है ना? जी और धरती जी माँ भी याद आएगी, बच्चा पेड़ से भी जुड़ेगा। एक चित्र बहुत सारे भाव अपने अंदर सिमेटे हुए, लाजवाब चित्रकारी है ये, है ना? तो जी सर। ऐसे चित्र अगर हमारे पास होंगे, कहीं ना कहीं दक्षता विकास होगा, है ना? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस चित्र को शीर्षक दीजिएगा, क्योंकि शीर्षक देना भी एक वो है, उसमें आया है कहीं कॉम्पिटेंसी में, कि बच्चों से पूछें शीर्षक, है ना? उसको विस्तार देना सिखाएं उस शीर्षक को। पहले वाले का आ गया, देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव, बिल्कुल। पेड़ हमारा जीवन, सही है ना? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सर।
पाठ्यक्रम हम एक बहुत प्यारी सी टिप्पणी आई है और वास्तव में चर्चा उस पर हो सकती है। विद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ाते समय कई बार गतिविधियों का ध्यान मतलब इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन पाठ्यक्रम हमारे हाथ में है। अगर हम एक वर्ष में 10 पाठ अगर निश्चित कर दें और गतिविधियों को स्थान दें, 10-12 पाठ बहुत होते हैं एक साल में पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने, बाकी अगर हम गतिविधियों को स्थान दें तो कहीं गतिविधियां हो जाएंगी, है ना। माँ के समान प्रकृति, पेड़ हमारी माँ, देखिए कितने सारी शीर्षक यहाँ पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे जो विषय होते हैं, हमारे जो पाठ होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन विषयों से संबंधित होते हैं। तो उस पाठ को पढ़ाते समय हमारी गतिविधि यदि हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि मुझे बिल्कुल ये करना है, बिल्कुल और उसके आधार पर हम वो 40 मिनट अगर हम अच्छी तरह से उसका बोलते हैं ना बाइफिकेशन अगर अच्छे से कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से ये गतिविधियां क्लास में होती हैं और बच्चे इनमें ज्यादा बिल्कुल, उत्साह दिखाते हैं। इनमें उत्साह दिखाते हैं। अब देखिए ये चित्र कितना प्यारा सा चित्र है, क्या मम्मी याद नहीं आएगी? बिल्कुल। आएगी, है ना। क्या बढ़िया चित्र है, मतलब इसमें तो कल्पनाशीलता, मतलब बच्चा तो क्या प्यारा लिखेगा। मेरी माँ, नारी शक्ति, देखिए कितने टॉपिक आने लगे। आज वास्तव में सक्रिय भागीदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारी एक कार्य अनेक, नारी एक कार्य अनेक, नारी की शक्ति बहुत सारे, महान। जी, बहुत सारे टॉपिक आ गए, है ना, आज की नारी। ये अब भाषिक गतिविधियां भी देखें। अब देखिएगा कैसे हम कहां से चले। हमने कहा कि पाठों का विस्तार कैसे होना चाहिए, हमने इस बात पे भी चर्चा की, पाठों का विस्तार कैसे हो, हमने इस पर बहुत अच्छी चर्चा की। व्याकरण कैसे पाठ के बीच में से ही निकाला जाए, कैसे पढ़ाया जाए, उस पर चर्चा की। अब गतिविधियां हैं, आप देखिए इस गतिविधि में आप देखेंगे कि कैसे गेंद बनानी सिखाई जा रही है, कला समेकन है, आओ गेंद बनाएं। और वास्तव में बहुत प्यारी सी गतिविधि है। आप देखिएगा कला समेकन आ गया, आर्ट आर्ट इंटीग्रेशन आया, और कैसे बनाएंगे, है ना। अगड़म बगड़म चकलम बकलम चकई की चक धुम गाए, अगड़म बगड़म चकलम बकलम चकई की चक धुम गाए, खेलेंगे हम कैचम कैची पहले गेंद बनाए, पहले गेंद बनाए, आओ गेंद बनाए, पहले घर से कुछ ले आए, क्या क्या लाना होगा हमको जल्दी से बतलाएं, कपड़े कतरन कागज पन्नी सुतली लेकर आना, पहले कागज गोल करें फिर चकलम बकलम गाना, पहले कागज गोल करें फिर चकलम बकलम गाना। आगे आगे बहन आप करेंगी पूरा? अवश्य सर। सर स्क्रीन चेंज कर दिया ना? हाँ। हाँ, दूसरा है। कागज के, हाँ, कागज के गोले पर पन्नी कतरन खूब चढ़ाना, कपड़े में रख उसको फिर सुतली से कसते जाना, कसकर सजा सजा कर बांधे सुतली गेंद सजेगी, रंग बिरंगी गेंद हमारी सुंदर बहुत लगेगी, कैचम कैची खेलेंगे फिर अगड़म बगड़म गाकर, थक जाएंगे घर जाएंगे कुछ आएंगे खाकर, थक जाएंगे घर जाएंगे कुछ आएंगे खाकर। तो देखिए बहुत ही सुंदर, आपने बहुत बढ़िया, मतलब अब सुनीता बहन के लिए ताली होनी चाहिए, वास्तव में बहुत प्यारा गाया है ना। धन्यवाद सर। और देखिए एक टॉपिक आया, मेरी माँ सुपरमैन, क्या बढ़िया टॉपिक आया, मेरी माँ सुपरमैन, है ना। तो इस प्रकार की गतिविधियां अगर हम करवा रहे हैं, आप देखिएगा बच्चों से कहीं संवाद बढ़ाना है। आपने कोई पाठ पढ़ाया पर्यावरण के ऊपर, पौधे के ऊपर पाठ पढ़ाया, छठी सातवीं आठवीं में आप बच्चों से संवाद कर रहे हैं, तीसरी चौथी पांचवी में भी अगर आपने पाठ पढ़ाया, फिर हम संवाद कर रहे हैं। भाव साम्य के लिए हम कविता ला रहे हैं। कविता क्या है? एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया, सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ, आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई, नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। अब कैसे कॉम्पिटेंसी से जोड़ दें, क्या क्या विकसित हो जाएगा जब हम संवाद करेंगे। तो देखिए माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा, आप यह खेल कैसे खेलते हैं,
है ना। अब बच्चे से संवाद, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? क्या आपने कभी गमले में पौधा उगाया है? आपको उसे बढ़ते देखकर कैसा लगा? अनुभवात्मक अधिगम, तो सब कुछ हमारे शिक्षण में आ जाएगा। अगर एक योजना है तो योजना से हाँ सब कुछ हमारे उसमें आता चला जाएगा। मेरी बात से सहमत है बहन? जी सर। आपकी राय में मतलब वास्तव में जब गमले में पौधा उगता है तो उसका अनुभव, यहाँ मैं सबसे संवाद नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहन आपसे ही संवाद जी कर रहा सर। हूँ। जब गमले में पौधा उगता है तो उस समय का अगर वर्णन बच्चा करता है तो किस प्रकार करेगा? वास्तव में वो बिल्कुल भावात्मक रूप से करेगा, क्योंकि पौधे से कहीं वो भावात्मक रूप से जुड़ जाएगा। तो जाता है। ऐसी जो गतिविधियां हैं वो कहीं बच्चे को खींचने का भी कार्य करती हैं, उसके मन को भाषा की ओर लाने का कार्य करती हैं जी। और आनंदित होता ही है। बहन बिल्कुल अपना बिल्कुल। अनुभव बांटना चाहेंगी? हाँ मैं सर अवश्य। जी सर एक कविता है, ये धरती कितना देती है। जी सो वहां पर जहाँ कवि जो है बालपन में अबोध हैं और वे पैसे उगाते हैं, जी जी और जी। क्योंकि उन्होंने अपनी पंडित जी तृष्णा बहुत को सुंदर कविता बोया है। था, इसलिए उसमें से कुछ नहीं निकला तो उन्हें लगा धरती बंजर है। पर जब सेम जी के बीज उन्होंने बोए और सेम की फलियां जब निकली, तब उन्हें जी वही बंजर धरती रत्न प्रसवनी लगी। तो कहीं ना वास्तव कहीं में वो छात्रों से जब हम जुड़ते जवाब हैं नहीं और इस इस कविता प्रकार, का। जी सर जी तो कैसे हम वास्तव लोग में। समाज में जब ममता और समता को बोते हैं तो फिर हमें समाज से वही मिलता है, जैसा बोते हैं हम्म, वैसा पाते हैं। तो छात्र जब वो पौधा लगा रहा है हर कक्षा में, मुझे लगता है ईवीएस के सब्जेक्ट में तो थर्ड थर्ड फोर्थ में ये पौधा लगाने की गतिविधि दी ही जाती है बच्चों को। प्लास्टिक में वो मूंग की दाल उगाते हैं, पर वो बच्चा जब उसको हाथ में लेकर संभालता हुआ सभी से उसे पकड़ कर, कहीं वो मुरझा ना जाए, गिर ना जाए, पानी डालना, उनको रोज देखना, सूर्य के प्रकाश में रखना, तो वो जो आत्मीयता है उसकी, ये आवश्यक है और जी कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है। जी बहुत ही सुंदर बहन। हाँ। जी अब देखिएगा चित्र, देखिए बातचीत गुरुजी और उनके जो शिष्य सामने हैं उनके बीच में क्या क्या बातचीत हो रही होगी, आप देख रहे हैं? देखिए कितना सुंदर चित्र है। तो क्या संवाद हो सकता है, बच्चे बता रहे हैं, है ना। तो इनके माध्यम से, और जैसा मैंने बताया अगर हम काव्य भी पढ़ा रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम का भी कोई काव्य अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें भी हम कहीं दक्षता विकास पर ध्यान दें। कोई भी है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता आप पढ़ा रहे हैं, उसके चित्र इस प्रकार के होने चाहिए आपके पास। कला समेकन वहां पर भी हो जाता है, बहुत प्यारा सा कला समेकन होता है। बच्चे रुचिपूर्वक उस पर पूरा छंद उस पर उतार देते हैं, बोर्ड पर बना देते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां हैं। आप मनुष्यता कविता पढ़ा रहे हैं, आप वहां पर भी कहीं जोड़ सकते हैं, बच्चे से उनके अनुभव बांट बांट सकते हैं, है ना। तो हर प्रकार से हम बच्चे को कहीं ना कहीं दक्षता विकास के लिए प्रेरित करते रहें। चाहे हम गद्य पढ़ा रहे हो, चाहे पद्य पढ़ा रहे हो, चाहे व्याकरण पढ़ा रहे हो, चाहे हम रचनात्मक लेखन करवा रहे हो। आगे देखेगा, चित्र बहुत प्यारा सा है। जी आज सर। हम बात कर रहे हैं कि कैसे बिल्कुल व्यावहारिक धरातल पर लाकर पाठ्यक्रम से इतर जाकर भी और पाठ्यक्रम में रहकर भी, हम पाठ्यक्रम के भी पाठ पढ़ाते हुए कैसे हम योग्यता विस्तार करेंगे, कैसे दक्षता विस्तार उनका करेंगे, दक्षता विकास कैसे करेंगे, इन सब पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत प्यारा सा चित्र है, इस पर बच्चे वास्तव में इस पर भी बहुत प्यारा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अवधारणा गीत हैं, ये तो आप पहले से ही आप इनको सुन चुके हैं, इन गीतों को, क्योंकि अब समय भी होता जा रहा है। आज एक संकल्प हम लेते हैं। अब पहले हम संकल्प लेते हैं और देखिएगा कैसे हम श्यामपट्ट का उपयोग करें। श्यामपट्ट भी आप देखें, श्यामपट्ट भी कहीं दक्षता विकास में मदद करता है। श्यामपट्ट भी इस प्रकार होता है कि सरल युक्तियां हैं, वो सरल युक्तियों को कैसे हम लाएं। अब देखिए श्यामपट्ट का उपयोग कर रहे हैं, कैसे हम उसका उपयोग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां हम गतिविधियों के माध्यम से वो दक्षता विकास कर सकते हैं। व्याकरणिक अवधारणाओं को कैसे सिखाएं, तो यहाँ पर वह चित्र है, आप देखें। व्याकरणिक अवधारणाएं बच्चों को आ जाएंगी, सहज रूप में आ जाएंगी। जो प्राइमरी स्तर पर है वहां व्याकरणिक अवधारणाओं की सहज पहचान कैसे हो, तो व्याकरणिक अवधारणाओं की सहज पहचान इस जो इमोजी के सहारे आराम से हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर, और व्याकरण को सरस बनाने की युक्तियां आगे, उसमें भी हम कहीं इसका उपयोग करते हैं। कहीं लयात्मक नवाचार आता है, कहीं जो कहना चाहिए जो युक्तियां हैं, युक्तियों के माध्यम से कहीं हम अवधारणाओं को आत्मसात करवाते हैं। तो आप देखिए अभी जो मैंने कहा, साहित्य पढ़ाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें।
तो साहित्य में एक बार और चर्चा करते हैं हम। साहित्य में आप देखिएगा कि जब आप साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अभी चर्चा की पर्वत प्रदेश में पावस की। ये मनोहर चमोली मनु जी के फेसबुक पेज से मैंने लिया है। लाजवाब है। जब हम कविता पढ़ा रहे हैं, उसके साथ हमने जो सहायक सामग्री इकट्ठी की है वो कैसे की है, उससे हम कैसे बच्चों के साथ संवाद करते हुए पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो छोटी कक्षा में हो सकती है तो 10वीं में है, और जो छोटी कक्षाओं में जो कविताएं प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं आ रही हैं, तो उनमें अगर हम प्रकृति के ऐसे दृश्य दिखाएंगे तो बच्चे ना लाजवाब प्रस्तुति देंगे, और इस प्रकार की प्रस्तुति पूरा पूरा छंद बोर्ड पर उतर आएगा। सच्चे अर्थों में दक्षता विकास यही है ना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक हम संकल्प लेंगे, हम सब मिलकर। आप देखिएगा, संकल्प हम सब लेते हैं। आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि आप अपना अपना जहां भी हैं दायां हाथ आगे कर लें। आइए संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि अपनी भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति अपने मन में अपने मन में अगाध श्रद्धा रखेंगे, अगाध श्रद्धा रखेंगे, और और युग की जो मांग युग की जो मांग दक्षताधारित शिक्षा के रूप में हमारे सामने है, दक्षताधारित शिक्षा के रूप में शिक्षा के रूप में जो हमारे सामने है, उसे 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 पूर्ण समर्पण के साथ निभाएंगे। उसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाएंगे। हम अपनी कक्षा को हम अपनी कक्षा को पूरी तरह से दक्षताधारित बनाएंगे, दक्षताधारित बनाएंगे, आनंद की अधिगम शाला बनाएंगे। आनंद की अधिगम शाला बनाएंगे। जय हिंदी, जय भारतवर्ष। जय हिंदी, जय भारतवर्ष। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की यह कार्यशाला सचमुच अद्भुत रही, और हमें विश्वास है कि हमने जो सीखा है और आज आपके सामने जो हमने प्रण लिया है उसे अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम हिंदी धन्यवाद। भाषा शिक्षण में केंद्रित दक्षता विकास के लिए हर उपयोगी और व्यावहारिक उपयोग को अपनी कक्षा में उतारने का सफल प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से अब निवेदन करती हूँ कि हमारे हृदय में ज्ञान के रत्नों की खोज आरंभ हो चुकी थी, और उन्हें प्राप्त करने की कुंजी जी हाँ सर के पास है। और आइए अब हम प्रश्नों की लड़ी जो है, प्रश्नों की लड़ी की शुरुआत कर दे। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। प्रश्न शुरुआत करेंगे। आप अपने अपने माइक को रेज योर हैंड्स फर्स्ट, अपने अपने हाथ उठा लीजिए और प्रश्नों की शुरुआत कर सकते हैं। Jayalakshmi ma'am, you can. नमस्कार सर। जी सर। मैम मैं अभी यहाँ पे चेन्नई से बात कर रही हूँ सर। जी अभी मेरे को रिसेंटली प्राइमरी में हिंदी पोस्टिंग मिली है। मैं मुझे हिंदी आती है, बट एज अ टीचर, शिक्षिका के रूप में मेरे को अभी पहली बार अवसर मिला है। कक्षा 1 और 2 के अनुसार मेरे को जो बेसिक रहता है व्यंजन स्वर, उसके आधारित पर कुछ ज्ञान चाहिए। मीन्स बच्चों को कैसे पढ़ाया चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में ना जहाँ स्वर आप पढ़ा रही हैं तो उसको लयात्मक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। यूट्यूब पर मिल जाएगा, एनसीईआरटी साइट पर भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी साइट पे लीजिएगा, देखिएगा बहुत प्यारी धुन है। बच्चे धुन सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी। आ ई ऊ री
ए ऐ ओ औ अङ्गः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श्र। तो आप बच्चों को गा के, इस उम्र में अगर गा के हम बच्चों के साथ संवाद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बच्चे खेल खेल में गाने के रूप में इसको सीख जाएंगे। तो जी सर, मेरे पहले को वही, आप एक बार मैं एनसीईआरटी वही साइट पर जानना जाकर, चाहती हूँ कि जी, YouTube में उसके लिए लिंक वगैरह उपलब्ध होगी ना सर? यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी की साइट पर जाएंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। Ms. Pooja Arora. थैंक यू सर। शुभ संध्या सर, मैं पूजा अरोड़ा। सर मेरा प्रश्न ये था कि कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए हम उनकी मात्रा संबंधी शुद्धियों को कैसे इम्प्रूव करें? बहन, जो मैंने पीपीटी दिखाई थी उसमें जो पहला था वो नवी के छात्र की ही कॉपी थी। और 8 दिन जी के अंदर उसने लेख में सुधार किया था, और धीरे धीरे करके 3-4 महीने में जो सामान्य अशुद्धियां थी वे उसकी दूर हो गई थी। तो एक बार बच्चे से आप जुड़ जाइए, बच्चे को विश्वास में लेके, अगर उसको पहले उसकी अधिगम रिक्तताएं पहचान जाइए, कहाँ कहाँ वह अधिगम रिक्तताएं कहाँ कहाँ कर रहा है। उसके बाद में उसके साथ प्रयोग शुरू कीजिए, मुझे विश्वास है आपको कामयाबी मिलेगी। प्रेरित करते रहे, धन्यवाद। मतलब बल बल धन- प्रेरित उसको करते रहे कि बेटा कर सकते हैं, बेटा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिखेंगे ऐसे। सर प्रेरित तो करते हैं, पर फिर भी कई बार जैसे ई ऊ की, जबकि उन्हें मैंने बहुत इजी सा जो आपका मेथड था वो जरूर बताया कि जी हमारी क्रिया के साथ जो है हमें क्या लगाना है, संज्ञा के साथ हमें क्या लगाना है, इस तरह से भी समझाया। पर फिर भी वो कहते हैं मैम पहले तो किसी ने नहीं बताया ना, तो अभी भी हम वही कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, उनसे कहना पहले नहीं सीख पाए बेटा, आप तो सीखें, कम से कम उनको प्रेरित करते रहे बस थोड़ा सा हम भी यही कि कहते हैं, आप जैसे अच्छा लिखेंगे। हम आपसे सीख के जब उन्हें सिखाते हैं तो हम भी उन्हें बिल्कुल प्रेरित करने का प्रयास करते हैं सर। जी 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 जी, धन्यवाद सर। जी जी। Ms. Shama Parveen. Shama, you can unmute, or we will go to the next participant. Sheelavati Lokesh. नमस्ते। यस, शीलावती लोकेश स्पीकिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। आपकी तो आज की कार्यशाला बहुत बड़ी थी, बढ़िया था। मगर मुझे एक डाउट है, जो जी बताओ। 22 तारीख को सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर निकला है ना, जी उसमें अटैचमेंट में बताया गया है कि थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल है। अगर थर्ड लैंग्वेज देकर, वो तो पहले से भी ऐसे ही था ना, थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल, चिल्ड्रन वर्ग, बच्चे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे थे, जो भी इच्छा रखते हैं वो, इस बार भी ऐसा ही आया है। तो शायद कौन पसंद करेगा, क्योंकि एक और सब्जेक्ट उनके लिए ज्यादा पड़ेगा पढ़ने के लिए, वो जो जो जरूरी नहीं है, ऐसे समझते हैं हर बच्चे। बहन, तो इसके लिए हमने हमें तो थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोर्ड के द्वारा जब तक सर्कुलर जारी नहीं होता है, अभी केवल उन्होंने उसमें लिखा है, लेकिन जब अ, तक बोर्ड सर्कुलर इस संदर्भ में कोई जारी नहीं करता है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अब हम बच्चों को सलाम सर क्या ने शुरू में बताएं? ही पाठ्यक्रम के बारे में भी उन्होंने इसी बात को कहा था कि हमें थोड़ा सा कहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न है कि अभी तक वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो अपलोड ही नहीं हुआ है अभी। अपलोड हो हाँ, जाएगा तो डाउनलोड होने लगेगा, और नहीं, जैसे बाकी ही सब सर्कुलर तो आ आपका जाएगा। है ना। हाँ हाँ, नहीं, बाकी आपने जो प्रश्न किया मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। आपका जो हम्म। प्रश्न है मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि जब हमें ना बोर्ड के द्वारा जारी सर्कुलर का इंतजार करना चाहिए। सर्कुलर आ जाएगा, सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। जो आप कह रही हैं वो भी बोर्ड कहीं ना कहीं क्लियर करेगा, है ना, उनके अच्छा सर्कुलर अच्छा, का नहीं, सर्कुलर उस का 22 तारीख को जो निकला है, मार्च 22 तारीख को, उसमें तीसरी भाषा ऑप्शनल लिखा है। अगर बच्चा चाहेगा तो ले सकता है, जैसे वोकेशनल हो है ना, जी वैसे। जी Yes, ma'am. It is optional only. If any child wants to learn a separate language, she can take it as a 7th subject. या
ओके ओके ऑप्शनल हाँ ऑप्शनल और जितने प्रकार के भी जो शंकाएं हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं कि अभी तक जारी वहां से सर्कुलर वैसा नहीं हो पाया है। पाठ्यक्रम को हाँ लेकर हाँ भी ये अगर बहुत है सारे मतलब बार बार वही फोन भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं, it तो is उसके there लिए in हमें the प्रतीक्षा करनी चाहिए, secondary वो अभी curriculum, अपलोड sir. नहीं हुआ है। जी It is there in the secondary curriculum now. जी हाँ इट इज देयर इन सेकेंडरी करिकुलम, यस Secondary मैंने पढ़ा curriculum, है yeah. उसे। Yes, हाँ yes. So child can take any other language if you want as a third language, then it will be seventh subject. An या extra subject the child has to study. It is optional. या ओके। और नहीं तो हम तो बड़ी भाषाओं को लेकर भी थोड़ा भ्रम है। जब तक सर्कुलर नहीं आता उसके भी बार बार मैसेज आते हैं, तो जब तक कोई हाँ हाँ आधिकारिक सूचना बोर्ड द्वारा नहीं आती है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी अच्छा आगे। सर, तो हम तो बड़ी प्रतीक्षा रख रहे हैं कि जी तीसरी भाषा हिंदी आ जाए अभी दक्षिण भारतीयों के लिए। ये जी जी कंपलसरी बना है। अगर सीबीएसई वालों ने उस पर लागू नहीं जी कर पाएंगे तो अभी स्टेट में तो है ही तीसरी भाषा हिंदी जारी में है, पर सीबीएसई जी ने ही छोड़ दिया है, तो हिंदी वालों का हाथ पकड़ने वाला है कौन? नहीं नहीं, बोर्ड बोर्ड को भी ध्यान होगा। बोर्ड भी कहीं ना कहीं जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा, है ना। आप प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी Yes, sir. अच्छा So, सर। sir, it depends upon the state. Some states make, their language is compulsory, just like Marathi. As जी second language, child can take. But if the child is very keen to learn Hindi, she can take a third language as seventh subject. That is the option given सेवन in the सब्जेक्ट। curriculum. जी 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 नो बट बिल्कुल। आजकल के बच्चों के मन में ये है ना, क्यों हम अपने बर्डन ज्यादा करें? जो 5 में काफी है हम उसी में तो निपटाएंगे, 6th 7th की और जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के माइंडसेट है। That is why, madam, it is optional only. यस सर ओके। Okay. So, Urmila Saroj, ma'am. गुड इवनिंग सर। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर। सर मुझे ये जानना था कि 5th 6th के बच्चों को प्रोजेक्ट ऐसा दिया जाए ताकि बच्चे और उससे सीखें। ऐसा क्या उन्हें दिया जाए बिल्कुल। एक्टिविटी? वैसे तो मैंने बहुत कुछ दिया है। मैंने दिया कि अपने बॉडी पार्ट्स के अंगों पर मुहावरे लिखिए, आंख, नाक, मुंह, जीभ। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा, रोचक है। प्रस्तुत रोचक है इसी प्रकार किया। कुछ अनुभवात्मक अधिगम वाला जैसे दिया था, पर्यावरण से जोड़ दें। मान लीजिए गमला लगाने के लिए आपने गमले में कोई पौधा लगाने के लिए दे दिया, और उसका विकास वो भी लिखित रूप में और प्रस्तुत भी करवाएं। मौखिक रूप में भी हो सकता है, लिखित में भी गतिविधि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं रोचकता होनी चाहिए, तो सर अनुभवात्मक जैसे ये अधिगम आना मैंने चाहिए। करवा तो दिया, कला ये हो समेकन हो चुका गया, है सर। कला कुछ समेकन में भी देख सकते हैं हम। किसी कविता विशेष को लेकर उसकी ट्यून बनाने के लिए दें, तो गतिविधियां तो बहुत सारी हैं जो बहुत ही रोचक होती हैं। जैसे बुने गीत बनाए धुन, तो 2 पंक्ति आपने दे दी, 2 बच्चा बना रहा है और उसके बाद उसकी धुन बना के गा रहा है। तो बहुत सारी ओके ओके गतिविधियां हैं जो कला समेकन से जुड़ती हैं। कला समेकन वाली आप देंगे तो बच्चे उसमें कहीं ना कहीं रुचि लेंगे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी। Next is Rimbi Roy. नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से। जी मैं जी हिंदी टीचर हूँ, प्राइमरी की 1st से 5th तक। तो सर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ का जो कल्चर है वो पंजाबी है, तो बच्चे पंजाबी में ज्यादा बोलते हैं, उसका जी हिंदी का सही उच्चारण नहीं कर पाते। साथ ही जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ या उनको अपने आप कुछ लिखने के लिए कहती हूँ, तो वो बीच में हिंदी के बीच में ही पंजाबी को भी मिला देते हैं, तो उच्चारण के समय में भी और लिखित समय में भी। जी। देखिए, कोई भी किसी भी बच्चे को ना अपनी मातृभाषा से परे नहीं किया जा सकता। तो जी लेकिन हम प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा मातृभाषा से प्रेम करना है, हमें बहुत मतलब उसके प्रति भी प्रेम रखना है। लेकिन प्रयास करेंगे, अधिकाधिक प्रयास करेंगे कि हमारे शब्द जब हम हिंदी लिख रहे हो तो हमारे शब्द हिंदी में हो। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेरक वातावरण है, अगर उसके लिए प्रेरित आप करते रहें तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर लिखने लगेंगे। क्योंकि देखिए, बोर्ड भी कहता है, सीबीएसई बोर्ड भी कहता है कि मातृभाषा से
बच्चे को परे नहीं किया जा सकता। वो कहीं ना कहीं बोलेगा तो उसके शब्द आएंगे, मातृभाषा के शब्द आएंगे, लिखेगा तो आ सकते हैं। तो कहीं हमें बस प्रेरित करना है कि बेटा जब हम हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखें, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, जब बोल रहे हैं तो अच्छे प्यारे शब्दों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार जब एक अभ्यास करवाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें रुचि लेंगे और आपकी प्रेरणा से वे कहीं धीरे धीरे करके उन शब्दों का प्रयोग कम कर देंगे। जी घर पे एक्चुअली बच्चे पंजाबी में ही बोलते हैं, तो बिल्कुल, वही वो उनका मातृभाषा से उच्चारण। परे अब नहीं हो ट सकता। को वो ट को टैंका, च को चच्चा। मैम जी ये चच्चा लिखा है तो मैं बोलती हूँ ये तो पंजाबी में बोलते हैं, ये च है हाँ सिर्फ। तो जी बिल्कुल। ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी कि जब हमें लगता है कि बच्चे को सब कुछ आता है पर वो दो भाषाओं को मिला रहा है, तो वहां उसके नंबर कटते हैं। पर देखा जाए तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सारी बात पता हाँ होती है लेकिन बच्चे को। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक अंक काटने की आवश्यकता नहीं है। अंक में उदारता बरती जा सकती है, क्योंकि देखिए मातृभाषा से परे नहीं है, उसको सही सिखाना हमारा दायित्व है, लेकिन उदारता दिखाना, मूल्यांकन में उदारता दिखाना वो भी हमारा दायित्व है। तो उदारता दिखा दें, वहां पर बच्चे को गलती का एहसास करवा दें, उसको चिन्हित कर दें उसके शब्द को कि बेटा यहाँ पर इसके बदले यह शब्द आ सकता था, है ना। लेकिन मूल्यांकन में कहीं उदारता बरत दें, नंबर काट के बच्चे का हौसला नहीं गिराना। है ना, कहीं थैंक सिखाना है बच्चे को। उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम उसके अंदर वो दक्षता विकसित करें, भाषिक दक्षता, उस भाषा से प्रेम करना सिखाएं। मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी से प्रेम, तो कहीं वो मूल्यांकन में उदारता होगी, हमारे शिक्षण में उदारता होगी, हमारे चरित्र में उदारता होगी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। जी जी धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। Miss Aruna Agarwal, yeah. नमस्कार सर, मैं अरुणा अग्रवाल बोल रही हूँ। जी जी मुझे पूछना है कि ये पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होने वाला है, हमने पढ़ा था कि 9th की जी। किताबें बदलने वाली हैं, ऐसा कब तक होगा? क्योंकि अभी सोमवार से तो नई कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। किताबें बदलने का तो जो है चांस वो बहुत कम है, लेकिन हाँ पाठ्यक्रम जरूर अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने लगेगा, है ना। लेकिन किताबें तो आप पुरानी पढ़ाने शुरू कर दीजिए, अगर सत्र शुरू हो गया है तो पुरानी पढ़ानी शुरू कर दीजिए। ओके, कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है पाठ्यक्रम में? अभी तक तो संभावना यही है कि पुस्तकें तो वही रहनी है, अच्छा क्योंकि अगर होता तो अब तक आ जाता, पीडीएफ आ जाता। सही है, पुस्तकें वही है, स्पर्श और संचयन, या जो भी अगर एक कोर्स में आप पढ़ा रहे हैं तो दूसरी पुस्तकें हैं। बाकी पाठ्यक्रम बहुत जल्द ही आ जाएगा, है ना। ओके। पाठ्यक्रम अपलोड होगा तो डाउनलोड भी होना शुरू हो हाँ, जाएगा। मेरा जी प्रश्न यही था कि अभी अप्रैल 1 से शुरू करने के लिए सीबीएसई ने बोला है और अभी तक कुछ विशेष आया नहीं है पाठ्यक्रम के बारे में, तो कब तक आ सकने की संभावना है? ऐसे में ना हमें पुराने पुराने सिलेबस को ही आधार बना के पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, समय हम नहीं लगाएं। और वैसे प्रयास यही होगा, बोर्ड भी चिंतित होगा, क्योंकि अप्रैल करीब है, तो वो उससे पहले जारी करे या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी कर दे, प्रथम सप्ताह में। जी ओके, धन्यवाद सर, आ आपकी जाएगा। कार्यशाला बहुत बढ़िया रहती जी है। धन्यवाद सर। The board has clearly said that there will be change only for grade 3 and 6. जी Others as usual only. बिल्कुल। लेकिन पाठ्यक्रम लगभग कहीं आंशिक बदलाव हो सकता है कहीं, हाँ, लेकिन पुस्तकें वही रहेंगी, है ना। आंशिक लेकिन बदलाव ऐसा मैंने तो पढ़ा था। स्वीकार्य है, लेकिन पाठ्यक्रम आप पढ़ाना शुरू कर दें, वही पाठ्यक्रम पुराना वाला आप पढ़ाना शुरू कर दें। ओके, जी मैंने कहीं पढ़ा था कि 9th की किताब भी बदलेगी हिंदी की, तो ऐसा मैंने नहीं नहीं, पढ़ा था कि पीडीएफ आ वो जाएगा। अगले वर्षों में कहीं हो सकता है, इस बार तो अगर बदलनी होती अब तक बदल जाती। जी ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। Kikuja, Miss Kikuja. यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं कैसे हैं? कस्तूरबा बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरा नाम जी कीकू। जी जी सर, सर आपकी कार्यशाला हमेशा बहुत अच्छी रहती है और मैं इतनी मतलब इससे प्रभावित हूँ कि अभी मैं नेशनल पब्लिक स्कूल बैंगलोर में पढ़ाती हूँ, यलहंका में। और जी मैंने जी अपने प्रधानाचार्य को भी आपके बारे में बताया, तो अभी हम वही उन्मेष कक्षा 1 से लेकर और ये 8 तक, कक्षा 8वीं तक हम इस पुस्तक को अभी नए सत्र से जारी कर रहे हैं और बच्चों को बहुत पढ़ाएँगे, बहुत धन्यवाद उत्साहित मैम, ये तो रहती हूँ मैं। खुशखबरी सुना दी आपने। जी सर। जी सर, बहुत ही, मैं खुद ही इतनी खुश हूँ सर कि कब हमारा वो नया सत्र शुरू होगा। टीचर्स हमेशा
छुट्टियों के लिए वो करती हैं कि छुट्टियाँ शुरू हो, लेकिन मैं उन किताबों को पढ़ाने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और सर बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। यह एक सवाल है कि जी जैसे ग्रेड 3, 4, 5 के लिए अगर हम यहाँ दक्षिण भारतीय में पता है आपको कि इनकी जो उच्चारण होती है वर्तनी जैसे खाना, गाना ये सब, तो उनको गृह जी कार्य के लिए मैं क्या ऐसे दूँ ताकि उनकी भाषा और भी सुघड़ हो सके और वो अच्छे से क्रिएटिव राइटिंग जो सृजनात्मक लेखन होती है, वो अच्छे से और लिख पाएँ? जी सर। जो आप अधिगम रिक्तता पकड़ रही हैं, जैसे आपने अभी कहा क ख में अंतर नहीं, जी, ख को क जी, की तरह उच्चारित कर दिया जाता है। जी, जो भी जी, अधिगम रिक्तताएं और भी अधिगम रिक्तताएं आप पकड़ लें और उसी से संबंधित आप जी, अभ्यास लगातार देते रहें। मतलब आपने जी सर, लगातार का अर्थ यह है कि आपने 7 दिन अगर निर्धारित किए, 15 दिन निर्धारित किए, तो 15 दिन में एक बार ऐसा अभ्यास चला जाए, उसमें जी, नियमितता होनी। तो अगर ऐसे जी, आपने जहां अधिगम रिक्तताएं पकड़ ली हैं और उन पर जब अभ्यास शुरू होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों में जी, सुधार होता है। जी, तो जी आप ऐसा सर। प्रयोग कीजिएगा, है ना। हाँ जी जी सर, और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ सर, जी मुझे आज मौका मिला है जी तो इस जी जी नेशनल पब्लिक स्कूल में जब मेरी इंटरव्यू थी और मेरा डेमो लिया गया था, तो सर मैंने जी वही सब अपनाया जो आपने संज्ञा के लिए सिखाया था कक्षा 4 के लिए मेरे, जी तो जी 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 मैम को इतना पसंद आया, तो हमेशा मैं चर्चा करती हूँ सर और आगे भी मैं आपकी कार्यशाला वो मेरा अटेंड सौभाग्य करने बहन। की पूरी बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। थैंक यू सर, मेरा थैंक यू सब सो मच। थैंक यू सर बिल्कुल। धन्यवाद। जी। Dr. Munish, सर्वप्रथम आप सभी नमस्कार। आदरणीय महानुभावों को एवं ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। तदुपरांत मेरा कैसे हैं प्रश्न आप? ये है मान्यवर जी कि सीबीएसई बोर्ड हिंदी को लेके इतना मतलब मतलब मेरा जहां तक कहना है कि हिंदी को लेकर के सीबीएसई बोर्ड पता नहीं क्यों मतलब एक्टिव नहीं है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर टाइम से नहीं मिलता है हिंदी का सीबीएसई की साइड पर, मेरा यहाँ तक मानना है। हर चीज अवेलेबल हो जाएगी, सीबीएसई की कार्य साइट खोलते हैं, लेकिन हिंदी का कंटेंट चाहे वो सॉल्व पेपर हो चाहे वो वर्कशीट हो अवेलेबल नहीं होती। मान्यवर आप जैसे लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये बात हमारी आगे रखें। नहीं, पहली बात। आपकी बात पहुंच जाएगी। आप एक मेल विनम्र भाषा में आप तो लिखेंगे ही विनम्र भाषा में, जी स्वाभाविक। और एक मेल आप जरूर कर दीजिए क्योंकि आपकी भी बात सुनी जाएगी वहां पर, और कार्य जी वहां पर होता है, कार्य बड़ा समर्पण से करते हैं वे लोग। जी डॉक्टर कार्य साहब। वहां पर समर्पण से ही होता है, लेकिन हो जी जी सकता जी है कुछ टेक्निकल एरर आया हो, अपलोड नहीं हो पाया। तो अपलोड हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो फिर हम सब डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। सर, ये एक लेकिन आप इसी लेटर से जरूर इसी बार लिखिएगा, की बात नहीं, हर उत्तर साल जरूर। ऐसा ही होता है। सीबीएसई की बोर्ड की जब भी कोई वर्कशीट डाउनलोड करनी हो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हो, सॉल्व अनसॉल्व, हिंदी के मिलते नहीं है साइड पर, बाकी सब चीज अवेलेबल होती है। हर चीज हर साल नहीं, देखता हूँ मैं। आप इसके बारे में ना एक पत्र लिख दीजिएगा, सही ना। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई। और बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दूसरा दूसरा एक निवेदन और रहेगा आपसे जी कि अभी भी स्कूल मैनेजमेंट इस बात को लेकर के मतलब कहना चाहिए कंफ्यूजन डायलेमा की स्थिति में है कि 11th में जो दूसरी लैंग्वेज लगानी है, हिंदी गुजराती वाटेवर जो भी है, वो कब से इंप्लीमेंट होगी, नेक्स्ट ईयर से और इस साल से सर? देखिए, मैंने अभी वो कहा भी था, पहले एक प्रश्न आया था, हमें ना आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो हो सकता है यू आर बोर्ड वेरी राइट बहुत सर, जल्दी बट आधिकारिक नया सूचना। सेशन कल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से, परसों से, तो तो मेरा देखिए, मानना है इसको। फिर हमें लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है, कोई जी जी। सर्कुलर नहीं आता है बोर्ड द्वारा, तब तक हम कैसे लागू करेंगे ना। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, यू में अगले मोस्ट वर्ष की प्रोबेबली नेक्स्ट प्रतीक्षा ईयर से करनी चालू चाहिए। हुआ है सर। है जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी जी। Mr. C.K. Tiwari, गुड इवनिंग सर। Reena ma'am. Okay, good evening. सर मेरा प्रश्न है कि जब हम बच्चों को वर्ण विचार कराते हैं तो उसमें अंतस्थ व्यंजन जब हम बच्चों को समझाते हैं जी तो उसमें उसकी परिभाषा में लिखा है कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, लेकिन जब अब हम्म बच्चे उच्चारण करते हैं य र ल व तो वो कहते हैं कि मैम व पे आ रही है, ल पे आ रही है, मतलब छू रही है। तो उस समय हम बच्चों को कैसे समझाएं इस बात को? नहीं, कहाँ कैसे य बोलेंगे तो जीभ कहीं नहीं छू रही है। सर र और ल, य र ल व, हाँ, तो ल पे भी सर छूती है। अब देखिए, उसमें उनको माना गया य र ल व,
तो जीव यस का सर। हल्का सा कार्य तो हर एक उसमें रहेगा, लेकिन बहुत अधिक कार्य यहाँ पर है नहीं इनमें, अंतःस्थ व्यंजनों में। तो सर कैसे उनको उस तो समय हम उनको समझाएं कि परिभाषा और इसमें दोनों में अंतर आ जाता है। परिभाषाओं में तो नहीं, परिभाषाओं में नहीं उलझाएं, उनको सहजता के साथ ही सिखाएं। बेटा जो लिखा हुआ है उसको एक बार अनुभव करके देखें। तो जो यौ है, यौ के उच्चारण में तो कहीं मिल ही नहीं रही है। व है, व के उच्चारण में कहीं जीभ बहुत अधिक कार्य नहीं कर रही है ना। तो सर र ऐसे ही और ल। उसमें सूक्ष्म है, लौ और उसमें सूक्ष्म है, बहुत अधिक यस नहीं है, सर। इसलिए कहा गया है ना। हाँ जी। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। Mr. Tiwari, जी प्रणाम। प्रणाम जी, मैं कैसे हैं आप? चंद्रकांत तिवारी जी जी सर, आपको कैसे हैं आप? हमेशा सुनता हूँ, प्रेरणा जी लेता जी हूँ। जी, नहीं तो मेरा सौभाग्य है। अरे सर, मैं एक सीधा प्रश्न रखना चाहता हूँ और जी बहुत जी ही आधारभूत प्रश्न है। जी कि ये जो पाठ है बड़े भाई साहब, जी इसमें एक प्रश्न है, आता है कि इसके नायक कौन है। बस जी। ये एक प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूँ। देखिए, कथा कौन और सुना रहा है, कथा कौन प्रस्तुत कर रहा है? कथा तो छोटा भाई ही प्रस्तुत कर रहा है जी ना। तो कथा नायक जी वही माना जाता है, माना ही वो जाता है। और देखिए उसमें रोल भी आता है, जैसे बहुत सारे जो प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको मंचन किया है, नाट्य मंचन हुआ है। तो उसमें भी जो नायक है, नायक छोटे भाई को ही माना गया है। नायक के रोल में अच्छा छोटा भाई करता है, तो छोटा भाई ही नायक है उसका। कथा नायक वही है, कथा का नायक वही अपनी स्टोरी सुनाता हुआ चला जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। Miss Yogita, Yogita is not there. Next, promote something, somebody. Yes, you can थैंक ask. यू सो थैंक यू सो मच सर। एंड आज की शुभ संध्या बेला में आप आप सभी आप महानुभावों को नमन करती हूँ। विनोद सर, मैं कुछ कक्षा 10वीं, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के विद्यार्थियों पर एक जी प्रयोग की हूँ, जो कि जी। यहाँ पे जो अभी उच्चारण की बात की जा रही थी सर, क ख। सो हाँ हाँ हमने हमने अभी तक एक कंप्लेन किया है कि वो नहीं सुनते नहीं सुनते हैं। तो मैंने एक जी। नवाचार किया। मैंने कक्षा बहुत। के दौरान एक छोटा सा एक्ट किया है, बच्चों से करवाया कि जी दरवाजे पर आपके मित्र जी नॉक कर रहे हैं और वो जी पूछते हैं कि क्या मेरा बाई आपके घर आया है? तो जी आपकी मम्मी कहती हैं हाँ, अभी तो वो रसोई में काम कर रही है। सो जी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या गलत सही हुआ? वो जी कहते कुछ भी नहीं। उस समय जी सर मैं उन्हें बताती हूँ कि जो बच्चा आया था वो किसको ढूंढने आया। जस्ट यू इमेजिन, कल्पना करिए, बोलिए मैडम वो अपने भाई को। वेरी गुड। यहाँ आप समझ गए कि वो भाई को ढूंढने आया है, लेकिन आपकी मम्मी ने क्या उत्तर दिया? बाई को। जी। सो वहां हाँ कंफ्यूज बेटा, जो मम्मी ने उत्तर दिया वो मम्मी को लगा कि सर्वेंट के लिए। सो इस तरीके से बिल्कुल, सर मैंने समझाया। और बहुत अच्छा दूसरा, प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है ऐसे। जी धन्यवाद सर। और दूसरा मैंने समझाया कि आप मम्मी को कहते हो मम्मी मुझे काना चाहिए। आप स्कूल से जी आते हो खेल कर, जी जी तो जी आपको मम्मी काना देती है। यस मैम देती हैं, लेकिन मम्मी आपको काना नहीं देती हैं, फूड देती हैं। सो फूड में क नहीं ख। वहां पर सर जी साउथ के बच्चे एक यूज जी करते, मैम सेकंड ख। आई से नहीं, सेकंड ख और फर्स्ट क नहीं होता है। क का बिल्कुल। अपना जगह है और ख का अपना आपका अपना जगह जगह है। है। हाँ हाँ, जी हाँ, जी अगर आपने काना मांगा तो उसका मतलब हिंदी में है जिसकी एक आंख नहीं होती है, तो उसे हम जी काना शब्द से संबोधित करते हैं। अब आप जी बताओ कि आपने क्या गलत बोला? मैम
क की जगह ख। सो बच्चों को बच्चों के द्वारा सर मैं उनकी गलतियों को बहुत अच्छा पहचानना प्रयास शुरू है करवा रही आपका, हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और आप व्यावहारिक धरातल पर लाकर बच्चों की कहीं अशुद्धियां धन्यवाद सुधार रहे सर। हैं। और इसके इस बार आपको मैंने बहुत बहुत क्या बधाई। किया, धन्यवाद सर। और एक और मैंने प्रयास शुरू किया है, हो सकता वो मेरी तरफ से गलती हो। जब मैं नोटबुक करेक्शन कर रही हूँ, सो नोटबुक में मैं डबल लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ जहां मिस्टेक है, और मैं उनको कह रही हूँ कि आप मुझे बुक पढ़कर और अपने सहपाठी से सहयोग लेकर मुझे बताएं कि क्यों मैंने डबल लाइन किया, मुझे गलती बताएं। मैं नहीं बताऊंगी कि आपकी गलती है। सर क्या ये प्रयास सही है या ये प्रयास गलत है? बहुत ही अच्छा है, यह भी नवाचारी प्रयास है। मतलब जांचते धन्यवाद समय सर। बच्चों की, और ये जैसे जो सहपाठियों की मदद लेना पढ़ाते समय, ये बहुत अच्छा प्रयास है। सहपाठी आपस में दो बच्चे मिलकर वो देखें कि वहां पर क्या गलती है, तो ये बहुत अच्छा है। हेमश्री, मिस हेमश्री। जी सर। बोलिए। यस सर, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और मेरा कहना ये है सर कि जो अभी सीबीएसई थर्ड लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा है, मतलब संस्कृत, तो उसका जो पाठ्यक्रम वगैरह है वो अभी सीबीएसई साइट पर अभी मतलब बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है इनकी। बहन, इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा कि इस संदर्भ में ना हमें अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। थोड़ी अच्छा। प्रतीक्षा करेंगे तो पोर्टल पे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, है ना। नहीं तो सर फिर जैसे पाठ्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से चालू करना है अपने तो को। पुराना पाठ्यक्रम आप पढ़ा लें, पुराना पाठ्यक्रम पढ़ा लें, पुरानी पुस्तक से पढ़ा लें, जो है ना। एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही है गवर्नमेंट में, वो उसी से, बुक से हम बिल्कुल उसी से पढ़ाएं, उसका यूज। बिल्कुल। अच्छा, जी ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। Yes, Sangeeta Rani, last question. हाँ जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते। बहन। हाँ जी, विनोद सर, आपकी कार्यशाला हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रही। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का जोश आप भर देते हैं हम सब में। तो मेरा मेरा जो सौभाग्य। मुझे एक सर सहायता चाहिए थी आपकी तरफ से। जैसे आज हम आपने बात करी नवाचार की, और उसमें जी पुस्तकालय का जिक्र भी हुआ, जो जी शायद आज से पहले मुझे नहीं लगता हमने कभी उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया है। तो पुस्तकालय में मैं अपने विद्यालय में कुछ अच्छी पुस्तकों का संचयन करना चाहती हूँ। तो कृपया कुछ ऐसी पुस्तकें बताएं जो कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों को सहायक हों, और कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए भी सहायक सिद्ध हों। उनकी जो रुचि है वो हिंदी भाषा में बढ़े। देखिए, अभी तो बताना मैंने बताया ही था। एक तो दिलीप रमेश जी हैं, उनको आप सर्च करेंगे तो उनकी पुस्तकें मिल जाएंगी गूगल पे जाके। एक डॉक्टर अजय जन्मेजय हैं, उनकी पुस्तकें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। और डॉक्टर नागेश हैं, उनकी भी पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। शादाब आलम, फ़हीम अहमद, है ना, जाकिर अली, संजीव जायसवाल, ये सब जो बाल रचनाकार हैं, बहुत अच्छे बाल रचनाकार हैं। और बाकी अगर आप ग्रुप से जुड़ी हुई होंगी तो मैं लिस्ट भेज दूंगा पूरी आपके पास में। आप बीटेक से जुड़ी हुई हैं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट हो गई आप। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, मैं बीटेक ग्रुप की सदस्य हूँ। तो बीटेक कौन आप सी? बीटेक 1, बीटेक 2, बीटेक 3? बीटेक 3 में सर। हाँ, तो मैं 3 में वो पूरी लिस्ट ही डाल दूंगा आपके पास। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Sunita ji, जी yeah, जी we can wind up, please. जी बिल्कुल। यस सर। ज्ञान और का सभी का हृदय से आभार। जितने भाई बहन जुड़े उनका आभार, सलाम सर आपका आभार, बीजू सर का आभार, सुनीता बहन आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्ञान का सागर, शब्दों का भंडार, शिक्षक है ज्ञान का आधार। वीणा वाणी मधुर, बोध कराए, हर अवधारणा मन में समाए। रचनात्मकता से शिक्षण का हुनर, कहानी खेल से जगाए मन में चेतन। आकलन का तीव्र निशाना, छात्र प्रगति का करे मूल्यांकन। संस्कृति का समावेश, हिंदी का सार, हृदय में स्थापित करे प्यार। धैर्य और सहानुभूति, भावों का संगम। प्रश्न का उत्तर दे सटीक हर पल। तकनीक का समावेश, ऑनलाइन शिक्षा, नया आयाम दे ज्ञान का। निरंतर शिक्षा की ललक, भाषा ज्ञान बढ़ता रहे हर पल। अंतर विषय शिक्षण का मेल, हिंदी का खेल अन्य विषयों से।
नवीनता का स्पर्श, रचनात्मकता का संगम, हिंदी सीखना हो मधुर और सरल। इन सभी गुणों से शिक्षक हो सक्षम, हिंदी सीखना करें हम सभी मधुर और सरल। आज की इस कार्यशाला के पश्चात इन सभी मूल्यों को सीखते हुए आज इस कार्यशाला के समापन पर हृदय से ज्ञान की ज्योति जल अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं आप सभी का जिन्होंने इसमें भाग लिया, डॉक्टर अब्दुल सलाम सर जी का, जिनके मार्गदर्शन का दीप ज्ञान की राह हमारी दिखाता रहता है, डॉक्टर विनोद प्रसन्न सर जी, आपके विचार और अनुभवों ने ज्ञान की गंगा बहा दी, माननीय शिबू सर जी, आपके प्रेरणा भाषण ने हृदय को उत्साह से भर दिया, एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन ट्रेनिंग की तकनीक टीम, आपके सहयोग ने कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को फिर मिलेंगे अगली कार्यशाला तक। आप सभी के साथ, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। Thank you Sunita ma'am, and thank you Vinod sir. धन्यवाद सर। Actually we had a very nice session as always. It was not a kind of learning, it was entertainment as well. धन्यवाद। Yes, definitely you were entertaining everyone, and so everybody was involved in the learning. That is what is required. So we have to learn, from Vinod sir how to teach in classroom in an engaging way, in an interesting way. So thank you so much once again. Maybe after 3 months we have had your session, and somebody was asking, Vinod sir, can we have a daily one session from you? Somebody was asking in the chat box. So that means they are very much eager to learn. So that we have to appreciate, sir. So on behalf of Vinod sir and Sunita ma'am, we appreciate all the participants who have joined. Please continue your learning. We have, our BTech groups, 3 Hindi groups are there, very active groups. Vinod sir also is very active there. You can ask any questions there, and sir is helping, everybody is helping. So let us continue this journey. Sunita Sharma is also there in Hindi group. Yeah. So everybody, thank you so much. Thank you Sunita ma'am for the nice, moderation, and Vinod sir for the wonderful presentation. Thank you, sir. धन्यवाद सर। Shubhratri, Jai Hindi and Jai Bharat. Right, sir? Thank you. जय भारत। जी Yeah. धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। Good night. Shubhratri. Thank you. Thank you so much, sir. धन्यवाद।